Hello everyone. Today we have Viren with us who will be doing the Quant's Masterclass. We will be starting shortly. We're waiting for people to join in. A lot of people are in the waiting room. We'll start quickly in 1 or 2 minutes. Viren, are you ready? Yes, we can. Yeah. Yeah, so guys, Viren is a 99.99 percentiler last year from JBIMS and he is currently in the first year in JBIMS. He's also the part of the TTP community. He was a student last year as well. Viren, if you'd like to unmute and just tell something about your experience in JBIMS as of now. Like you were the aspirant like a couple of months ago, and now you're a student in JBIMS. So how was your journey? Can you? It will give some kind of motivation to the students as well to listen that from you. Sure, Shreekanth. Hi everyone. My name is Viren Parekh. In last year CET 2022, I scored 99.99 percentile. Talking about JB, like all of you, I was just a fellow aspirant. And I had purchased like, and I was a student of TTP. Talking about my experience in JBIMS, I would say it is very great. It is awesome. You meet various kinds of people with who come with new perspectives. The environment of JBIMS is quite great. Great. I would say the different kind of people you meet, the different kind of alumni, the proper JBI alumni who come to college to teach us. The way of teaching of JBIMS is also very good, and also the summer placements. Right now, I'm summer placed, and I will be doing my internship with HDFC as well in the months of April from April. So this is a very short summary as well. When you guys come, you will, and I hope many of you come. I do hope that you uh, get the experience which I am and right now enjoying at JBIMS. Yeah, that's really great. So I think Viren, we can start with the session. Sure. Students have already got the PDF. The PDF Mm. is on our Telegram channel. You can go check it out from there. Viren will be solving the questions from that PDF as well, and will be explaining, topic shortcuts, etc. So yeah, we can begin. Okay, so hi everyone. So as like when I was preparing for my for CET, cons was a topic which like I was very comfortable with. I used to score. I used to get a score of 35 to 40 in cons, sometimes even higher. Like if even if the paper is tough, then my score used to be from 30 35. Also, quant is a topic like quant एक ऐसा topic है कि if you are good at calculations, it helps you great not only in quant but also when some similar type of question comes from the logical reasoning part. So what I used to do was कि मैं बहुत सारे tricks भी use करता था जब मैं पेपर सॉल्व करता था अपना quant पेपर सॉल्व करता था तो I will be using those similar tricks, a few of them, and I will be showing you कि how to reduce the time. So, like I'm pretty sure कि सबको कंसेप्ट तो पता होंगे लेकिन अगर मेरा प्रॉब्लम एक लाइक यूजिंग प्रॉपर कंसेप्ट अगर मैं उसको 1 मिनट में सॉल्व करता हूँ सो इट्स बेटर टू लर्न हाउ टू सॉल्व दैट द सेम प्रॉब्लम इन 15 to 20 seconds. तो मैंने जो पीडीएफ शेयर किया था वो मैंने खुद ने बनाया है और लाइक वो सिमिलर वो आईबीपीएस वेबसाइट्स से वो क्वेश्चन सब मैंने जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मैं वहां से करता था तो वो सिमिलर काइंड क्वेश्चन ही रहते थे. So that taught me various tips and tricks which I used to do when I was doing a practice for fonts, and I will be showing you the same. I guess everyone has the PDF, and मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. मैं टैब चेंज करते रहूँगा क्वेश्चन के लिए और तो जहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा उस शीट में. So I hope the screen is visible. Yeah, Viren, it is visible. Okay. So here was the first real question. It is a data interpretation question. So what you can do is you can refer to the PDF and read the question. I hope some of you also might have solved it, and I will be solving it simultaneously in here. Okay. So yeah. What it is given के तीन सोसाइटीज है ABC जहाँ पे एवरेज पॉपुलेशन है 660 एंड रेशियो ऑफ पॉपुलेशन दिया है ABC और उसके बाद चिल्ड्रन
और अडल्ट में और चिल्ड्रन अडल्ट के बीच में मेल फीमेल में उनको डिवीजन किया। सो बिफोर सॉल्विंग एवरी डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन में जितना भी डेटा मिलता था ना, उसको फटाफट जॉट डाउन करता था, फटाफट, लाइक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्योंकि क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के जनरली 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं पहले पहला क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसका डेटा निकालता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसका डेटा निकालता हूँ, then that will take a lot of time for me. So instead, what I will do is I will quickly jot down all the data which I have, and then I will start solving the questions according to the data I am given. So मैं फटाफट एक टेबल बना लूंगा। देन मैं उसको डिवाइड कर दूंगा अडल्ट में और चिल्ड्रन में। नो नीड टू राइट एवरीथिंग अडल्ट एवरीथिंग, जस्ट एक शॉर्टकट, एक छोटा सा उसको ये दे देना डिनोटर, ताकि ध्यान में रहे। एंड उसको अपने को डिवाइड करना है मेल फीमेल में। सो इसको मैं मेल फीमेल में डिवाइड कर दूंगा। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है कि एवरेज बोला है तीन, थ्री सिटीज का, जिसका एवरेज पॉपुलेशन है 660। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन हो गया 1980। जब कभी भी डीआई का प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम में यू हैव टू बी वेरी क्विक विथ योर कैलकुलेशन, बिकॉज डीआई इज ओनली कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। अब कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट बोला कि इट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 40:36:23। So basically, what I will get is I will get population of A, B, and C. Population of A will be 40/99 into 1980. 40/19, तो basically जो मेरा रेशियो है 40, उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, which will give me the population of A. So that is 800. Similarly for B it is 720, and similarly for C it is 460. The next thing it is given is 30% of A are children and 220 of adults are male. तो ये 220 हो गया। Sorry for the handwriting, guys. थोड़ा सा like, but when you go on a rough sheet, no, ensure that you are writing it properly so that you yourself understand कि उसमें like what you're writing, you don't get confused in the future. और इसमें बोला 30% of children, so I will write here 240. Next is 47.5% आर मेल, यानी कि मेल का ओवरऑल पॉपुलेशन दिया है, which is 800 का 47.5 is 380. So total here male population is 380. अब क्योंकि मेरे को मेल का पॉपुलेशन दिया है अडल्ट्स का, तो चिल्ड्रन का आ जाएगा 380 माइनस 220। सिमिलरली इससे मेरे पास ये आ गया फीमेल पॉपुलेशन चिल्ड्रन का, और इससे मेरे पास ओवरऑल ए का पॉपुलेशन आ जाएगा जो रहेगा 340। नेक्स्ट है डी। डी का क्या कंडीशन दी? 83.33%। 83.33 is 5/6, दैट्स वाई 5/6। ये मेरे को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ये मेरे को रेशियो ऑलरेडी पता था, इसलिए मेरे को इतना पता है कि जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो 5/6 रहेगा 720 का। अगर मेरे को नहीं पता रहता था कि 83.33 है क्या, तो मेरे को वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ता था, 80.83.33 इंटू 720/100। इंस्टेड आई कैन जस्ट पुट दिस इन फ्रैक्शन, 83.33 इंटू 720 बाय, ये हो गया 600। तो द टोटल अडल्ट पॉपुलेशन इज 600। आई विल राइट समवेयर हियर ताकि वो मेरे ध्यान में रहे। Here, this is the adult population, this is not the female population. I am just writing it for my convenience. And because of it, the children population is 120. The next what is given is the number of adult females is equal to the number of adult males. Sorry, the number of male children is equal to the number of female children. यानी कि ये 60 हो गया। And the next condition is the number of male children is equal to the number of female children. Okay, that's it. इतना ही information दिया है। अच्छा नहीं, ये और एक दिया है कि द नंबर ऑफ अडल्ट फीमेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स इन सोसाइटी है। अब मेरे पास सोसाइटी ए का अडल्ट पॉपुलेशन दिया है जैसे 220, विच इज इक्विवेलेंट टू द अडल्ट फीमेल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 220 और यहाँ पे आ जाएगा 380। सिमिलरली मैं यहाँ पे आ जाएगा 380।
सिमिलरली मैं जो भी गिवन कंडीशन रहेगा उससे सी का पूरा डेटा निकालूंगा. Point I'm trying to make is before attempting a DI question, jot down all the data. It takes 2 to 3 minutes. I understand, but डेटा अगर रहेगा ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ कंडीशन दिया है, यहाँ क्वेश्चन दिया है, द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन चिल्ड्रन इन ए एंड सी. तो मेरे को फीमेल चिल्ड्रन कितना है ए में, फीमेल चिल्ड्रन कितना है सी में, वो बार बार मेरे को निकालना नहीं पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए. और अगर यही चीज अगर कहीं रिपीट होती है, फीमेल चिल्ड्रन इन सोसाइटी है, कोई दूसरे क्वेश्चन में रिपीट होती है, तो मुझको फिर से वो डेटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रेटी ऑब्वियस है कि मैं उसको तब तक भूल जाऊंगा. सो सिमिलरली सारा डेटा मैं निकालूंगा, देन आई विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन हियर. दैट्स इट. गोइंग टू गोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डाउट है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट व्हेन द सेशन एंड्स वी कैन डिस्कस अबाउट इट. The next is again a DI question. इस बार DI लाइन DI दिया है, और इसमें एक कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पेड विजिटर्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स माइनस फ्री विजिटर्स. इसका मतलब मेरे को नंबर ऑफ पेड विजिटर्स निकालना पड़ेगा. सिमिलरली मैं इधर जाऊंगा, इधर अपना टेबल बनाऊंगा. आई थिंक मंथ के हिसाब से, या मंथ के हिसाब से. सो I can quickly draw, I can quickly, write as per the months. Jan, this is for Feb, March, April, and May. First is 1250, here it is 125. So here it will be 1250 minus 125, 1125. Next is 125, 250. And 250. So 1825 minus 250 will be 1575. Yeah. March 2350. So here I wrote 2000. Here it will be 350, and the number of paid users will be 1650. Ideally, ये जो टेबल में बना रहा हूँ, ये this should take only 30 to 40 seconds. And then because you have invested 30 to 40 seconds in this part, after when you start attempting the questions, it will be easy for you to not waste your time. For upfront it is 2500 and 650. Okay. So here 2500, 650, and here it will be 1850. And the next is 2400, 750. Let me just note down. ये है total number of visitors, ये है free visitors, and ये है paid visitors. Now that I have all the data, I will quickly go on solving the question. First, क्या बोले, price of one ticket, total income for the first 5 months. That would be this, the total sum of this, which will give us this number. Average number of paid visitors. अगर इसका फर्स्ट क्वेश्चन का मेरे पास आंसर आ गया है, तो सेकंड क्वेश्चन का भी आ ही गया, क्योंकि फर्स्ट में क्या बोला है, टोटल का इंटू 10 करना. सेकंड में क्या बोला है, एवरेज. तो बेसिकली टोटल डिवाइड बाय 5. फ्रॉम दैट वी विल गेट द एवरेज एज वेल. The third question is, in which of the following is the difference between total number of visitors? Okay, so इधर मेरे को जो डिफरेंस है अपना, ये पेड विजिटर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स, तो इनके बीच का जो रेशियो है पी अपॉन वी का रेशियो, ये सेकंड लोएस्ट कहाँ पे है, ये मेरे को देखना है. So instead of what, there are two ways I can do. I can start for calculating all the percentages, or instead I can find or instead I can see the difference. So यहाँ 1125 है, यहाँ 1250 है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है. So I can assume कि ये टॉप 5 पे कहीं आता है. I'm just for now assuming this will be in the 90% ballpark. 90%.
सेकेंड भी अगर मैं देखूँ मार्च का, तो ये भी 82% के बॉल पार्क में आएगा। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 74% के बॉल पार्क में आएगा, ये आएगा 66% के बॉल पार्क में। और 15 by 18, this will be around 83%. So, instead of doing all this calculation, what I can do is I can see the difference between them, और उसको मैं बेस से ले सकता हूँ। जितना बड़ा नंबर, जितना छोटा नंबर डिवाइड बाय उतना ही रेलेवेंट बेस, I will get a lowest number. Let me repeat again. जितना छोटा नंबर और जितना बड़ा मेरा डिनोमिनेटर, उतना ही छोटा मेरे को वैल्यू मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सिर्फ पहले एक एक नंबर देखूंगा और उनके बीच का कितना वो कितने मेरा जो फ्री विजिटर का वैल्यू है वो कितना छोटा है, और जो मेरा टोटल नंबर ऑफ विजिटर का वैल्यू है वो कितना बड़ा है, उसको मैं एक आइडिया ले लूंगा। और उसके बाद में फटाफट फटाफट नंबर्स लिख के आई विल गो डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पेड एंड पेड विजिटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ फ्री विजिटर्स। इन दोनों का डिफरेंस अगेन सिंपल। यू हैव ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज, अपने को बोला है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पेड विजिटर्स माइनस टोटल नंबर ऑफ फ्री विजिटर्स। तो व्हाट आई कैन डू इज दैट, अगर मैं इसका सम निकालूं, उसके बाद मैं उसका पूरा पेड विजिटर्स का सम निकालूं, इंस्टेड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो इंडिविजुअली। 1125 माइनस 125,000, यहाँ मैंने 1000 नोट कर दिया। सेकंड इज 1525 माइनस 250, दैट इज 1325। सो दैट इज 1325, यहाँ मैंने नोट कर दिया। या 1650 माइनस 350, दैट इज 1300। सो है ना, मेरे को पूरा ये पांच वैल्यूज की कैलकुलेशन नहीं करना है, इसके पांच वैल्यूज की कैलकुलेशन नहीं करना है, मेरे को सिर्फ ये जो पांच वैल्यूज आ रही है इसका कैलकुलेशन करना है, एंड आई विल गेट माय आंसर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फ्री विजिटर्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री विजिटर्स सेम। यहाँ पे मेरे को फ्री विजिटर्स का सम निकालना है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स, दैट्स इट। And I will be done with this GI. This GI should ideally take 4 to 5 minutes when you are 4 to 5 minutes when you are giving this on an actual paper. क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा हेवी है, लेकिन अगर पहले डेटा निकाल दिया तो then it will be easy. Moving on. Again, if you have any doubts now, you can note the number, and when we are about to end the session, we can clear all of those. Next. नेक्स्ट एक मिक्स्ड डीआई का सेट है। इसमें एक बार चार्ट भी दिया है, प्लस मेल टू फीमेल का रेशियो भी दिया है। सिमिलरली जो मैंने पहले किया था वही मैं इसमें करूंगा। फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ चार्ट। यहाँ पे मैं सबका ये लिख दूंगा कितना ये आ रहा है टोटल। सोशल साइंस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एंड द फिफ्थ सब्जेक्ट इज साइंस। अब पहले क्या बोला, 22% ऑफ सोशल साइंस, 22% आउट ऑफ 15,000। तो क्विकली 22 by 100 into 15,000, that will give me 3,300. So social science will be 3,300. अब सोशल साइंस आके हिंदी आ जाएगा 3,600। अब अगर पूरा 24/100 into 15,000 नहीं करना है ना, तो क्या कर सकते हैं। सोशल साइंस का दिया है 22, हिंदी का दिया है 24। तो दिस आर इन द रेशियो ऑफ 11:12। 11 का रेशियो क्या आ रहा है 3,300। तो सिमिलरली इसी से मैं 12 का रेशियो निकाल लूंगा 3,600। बेसिकली मैंने क्या किया कि 11 जो 11:12 का रेशियो है वो मैंने यूज कर लिया, इंस्टेड ऑफ डूइंग 24/100 into 36,000। दैट्स व्हाट आई डिड। सॉरी 24 into 15,000, not 36,000, into 15,000। ये 15,000 आई कैन गो दिस वे ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं मेरे पास सोशल साइंस का आ गया है जो कि 22%, और मेरे को हिंदी का निकालना है 24%। तो मैंने इनका रेशियो यूज किया, ये है 3,300, और इसका डायरेक्टली फिर यहाँ से 3,600 निकाल दिया, दैट्स इट। और वैसे ही मैं बाकी की वैल्यूज फिल कर दूंगा बाद में। ओके, मूविंग ऑन।
अब उसमें बोला है कि मेल टू फीमेल टीचर्स का भी रेशियो दिया है. सो क्विकली आई विल देन नोट डाउन द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल. मैंने साइंस और सोशल साइंस और हिस्ट्री का निकाला है, सो आई विल गो फॉर दैट. हिंदी का, हिस्ट्री का. हिंदी इज 5:3. सो क्विकली यहाँ पे आ गए. Here it will be 5 into 8 by 3600. So which is equal, this is 450. 450, 20 to 50. And this is of male, and female will be 1350. Similarly for social science, it is 11, 6 is to 5. So 6 is to 5 is, for male it is 1800, and for female it is 1500. Okay. कभी भी जनरली क्या होगा ना, when you attempt the question, ये जो ये जो रेशियो दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर सोशल साइंस इट इज 6 is to 5. तो ये जो रेशियो रहेगा ये 99% डिविजिबल ही होगा अपने सोशल साइंस के नंबर से. फॉर एग्जांपल यहाँ सोशल साइंस का नंबर दिया है 3300. अब उसने मेरे को मेल फीमेल का बोला है, विच इज इन द रेशियो ऑफ 6 is to 5. 6 plus 5 is 11. So this 11 will always be divisible by 3300. So instead of doing 6 by 11 into 3300, I can just split 3300 into 6 parts, which I got was which I got was 1800, and I will divide 3300 into 5 parts, which will be the remainder into which will be 1500. Similarly, मैं बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, उनका भी मेल टू फीमेल का डेटा निकालूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट अटेंडिंग द क्वेश्चंस. ओके. सो yeah, that's it. And once you get all the data na, then you will be able to solve all these questions very easily. Very easily. That's what I'm asking you again. I think first पहले data निकाल लो and then start attending the DI questions. This calculation won't take more than, I would say, 2 minutes, 2 to 3 minutes. That's it. 2 to 3 minutes. And after I'm done with this calculation, after when I get to solving the question, there are 5 questions here. This every question will take only 15 to 30 seconds, depending on the difficulty. And within 4 minutes, I will be able to solve the entire DI. Okay. So moving on. Data sufficiency. While I'm going to the next topic now. Data sufficiency के लिए कभी भी pen and paper use Hi Viren, करना. before starting data sufficiency, there are a couple of questions. So people are asking how to overcome the fear of quants. So if you can answer that and then move on to data sufficiency, that would be great. Sure. So how to remove fear of quants? No? So what you can do is, first of all, at least learn the basic, first of all, learn the basics of quants, and try to improve your calculation speed. First, learn the basic topics, and improve your calculations. The reason why I'm telling to improve calculations is कि अगर calculation speed अच्छा रहा ना, तो अपने आप you will be able to solve the questions in a much faster way as compared to traditional way, where you have to input all the formula, you have to write the formula, then input all the data and then solve it. इसमें क्या है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, और फिर अगर कहीं अटक जाते हैं तो फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लो होता है. So instead, first improve the calculations, then go for easy topics. When I say easy topics, which means percentages, profit and loss, this kind of topic, the arithmetic part. The reason why I'm asking you to go for arithmetic is because it is very calculation heavy. Calculations, you have practice calculations, then go for the calculation heavy topics, because and these are very easy topics. Percentages, profit loss. You don't have to learn very much as compared to modern math. When you learn these topics, then also arithmetic, because arithmetic is very important. You have already covered 50% of syllabus. How can you learn arithmetic? You can watch the TTP material. TTP material. You can watch the TTP material in here, or also you can go to YouTube and watch some videos. You can watch some YouTube videos of teachers who are solving IBPS papers. That will really help, and you can then practice. Like what I used to do, मैं smart पेड़ा पे जाता था, and I used to practice my questions from my. I used to practice my cons question from smart पेड़ा. It is IBP. It is used for IBPS preparation website, and once you solve
n नंबर ऑफ क्वेश्चंस में तो वो क्लियर अपने आप ही चले जाएंगे, बिकॉज एक पॉइंट के बाद वो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक. तो when you solve n number of questions, you will understand the topic also, and you will get to know the shortcuts also, and by this way you can remove your fear. So I guess this helps. Uh, uh, so moving on, and Yeah, Viren. also, so Some students are asking if the voice can be more clear. Can you do something about it? uh, like, am I audible? Like, Yeah, are you for able to hear me, me you're much more? audible. I think for people whose voice is not clear, please increase your volume. I think that will help. Yeah, Viren, you can continue. Sure. So next is data sufficiency. Data sufficiency का मतलब होता है कि आई हैव टू चेक कि जितना डेटा दिया है वो सफिशिएंट है कि नहीं. आई डोंट हैव टू फाइंड एन आंसर टू दैट. अब जैसे आप कोई क्वेश्चन दिया तो मेरे को ये नहीं फाइंड करना है कि उसका वो कितना, उसका नंबर एट द एंड सॉल्व करके उसका मेरा सॉल्यूशन क्या है. मेरे को सिर्फ ये देखना है कि जो मेरे को दो स्टेटमेंट्स, एक मेरे को एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया होगा, हियर इट इज, एंड देन आफ्टर रीडिंग द स्टेटमेंट मेरे को दो स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि जो डेटा मेरे को दिया है वो सफिशिएंट है कि नहीं. So from that, I have to solve the data sufficiency question. Data sufficiency के लिए I'm telling you again, don't even use a pen and paper. Just read it. Just read the statements. Try to recollect and then go ahead. For example, here what is given here, three people are given who are working on a project. All of them have different efficiency, and we have to find who is fastest among them. ठीक है, अपने को रानी, सुप्रिया और अमिता में फास्टेस्ट ढूंढना है. तो फर्स्ट इज Rani and Supriya take 5 days, okay, and because they have different efficiencies, जाहिर से मतलब है कि because 1/10 plus 1/10 is 1/5. यानी कि अगर दोनों की एफिशिएंसी इक्वल होती थी तो दोनों 10 दिन लेते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग है. इसका मतलब एक ने 10 से कम लिया है, एक ने 10 से ज्यादा लिया है. ओके, मेक सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन टू मी इज सुप्रिया एंड अमिता टेक 10 days टू कंप्लीट द 10 days. इसका मतलब इंडिविजुअली अगर सेम एफिशिएंसी रहती थी तो सुप्रिया तो सुप्रिया तो हो सकता था कि एक 20 से कम ले रहा है, 30 से ज्यादा ले रहा है. इससे मैं असर्टन नहीं कर पा रहा हूँ कि किसका कम है किसका ज्यादा है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल रीड द सेकंड स्टेटमेंट. उसने बोला है कि रानी एंड अमिता टेक 30/7 days. ठीक है, अब मेरे को रानी एंड सुप्रिया का स्पीड दिया, रानी एंड सुप्रिया का स्पीड दिया, सुप्रिया एंड अमिता का स्पीड दिया, रानी एंड अमिता का भी स्पीड दिया. देन आई विल सी के इसमें से फास्टेस्ट किसका होगा, एंड आई विल मार्क द लाइक. अब मेरे को ये फाइंड नहीं करना कि इसमें से फास्टेस्ट है कौन, रानी है, सुप्रिया है या अमिता है. मेरे को सिर्फ ये फाइंड करना है कि ये जो दो स्टेटमेंट दिया है उस पे से, उस बेसिस पे मैं अपना आंसर निकाल पा रहा हूँ कि नहीं. तो हाँ, इन ये दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पे मैं अपना आंसर निकाल पाऊंगा. So I will mark the relevant option which will be D1, that data in both the statement is sufficient, and I will go to the next question. Okay. या अगेन आई टेल यू, यहाँ पे मेरे को फाइंड नहीं करना है कि सबसे एफिशिएंट कौन है. मेरे को सिर्फ ये देखना है कि जो डेटा दिया है वो सफिशिएंट है कि नहीं. और हाँ, मेरे को जो दो स्टेटमेंट है दैट इज सफिशिएंट, आई विल मार्क दिस एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिमिलरली मैंने और एक रखा है यहाँ पे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन आईआईटी धनबाद गॉट द प्लेसमेंट. ओके, सो पहला बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन आईआईटी धनबाद रेशियो 3:4. ठीक है, एंड 80% इन कानपुर गॉट प्लेसमेंट. इससे मेरे को ये असर्टन नहीं हो रहा है कि आईआईटी धनबाद में कितने स्टूडेंट्स हैं. इससे ये भी असर्टन नहीं हो रहा है कि आईआईटी कानपुर में कितने स्टूडेंट्स हैं. लाइक मेरे को इसका एक प्रॉपर डेटा नहीं मिल रहा है. सेकंड स्टेटमेंट पढ़ूंगा मैं, विच इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट प्लेसमेंट फ्रॉम आईआईटी कानपुर इज 120% फ्रॉम हु गॉट धनबाद, फ्रॉम हु गॉट अ प्लेसमेंट इन धनबाद. सो हियर इंडिविजुअली तो ये स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है. बट इफ आई गो टू But if I combine this both the options, let me see if I will be able to. I won't be able to, but let me check. तो यहाँ क्या बोला है कि फॉर एवरी 120%, यानी कि आईआईटी कानपुर में अगर 6 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है, लेट मी शो हियर ओनली. आईआईटी कानपुर में अगर 6 बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है तो धनबाद में 5 बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है. ओके, इससे भी मैं ये असर्टन नहीं पता, इससे मेरे को एक रेशियो तो मिल जाएगा. हो सकता है मेरे को कानपुर में प्लेस बच्चे और
धनबाद में प्लेस बच्चों का रेशियो मिल जाए, लेकिन मेरे को ये पता नहीं चलेगा कि आईआईटी धनबाद के कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला है। आई डोंट केयर कि एक मेरे को एक प्रॉपर इंटीजर नहीं मिलेगा उसको सॉल्व करके। रेशियो, आई विल गेट अ रेशियो, but I won't get an integer. So what I can do is I can, because I'm not getting a proper number to this question, I can just simply mark the last option, which is that these both statements are not sufficient to answer the question. Okay, and I will move to the next question. So the next topic is quadratic equations. Quadratic equations is like uh, इसमें एक शॉर्टकट अगर पता हो, शॉर्टकट थोड़ा सा लॉजिकली शॉर्टकट अगर यूज कर लेना, so quadratic equations can be solved in 15 to 20 seconds. Let me show you that. अब फॉर एग्जांपल सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इक्वेशन कुछ भी दिया हो, यहाँ की पहले मैं तो साइंस नोट करूंगा, वो है माइनस और प्लस। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन को देखता हूँ, यहाँ पे दिया है प्लस एंड प्लस। ओके, मैंने ये यहाँ माइनस देखा, यहाँ प्लस देखा और एक दोनों जगह प्लस देखा, तो मैं सोचूंगा भी नहीं, मैं डायरेक्टली ए ऑप्शन मार्क कर दूंगा। आई विल डायरेक्टली मार्क ए ऑप्शन। द रीजन वाई मैंने इसके रूट्स नहीं निकाले, मैंने दोनों भी इक्वेशन के रूट्स नहीं निकाले, मैंने सिर्फ वो साइन देखा, क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि ये जो इक्वेशन मेरा बना एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसके दोनों के दोनों रूट्स पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ये जो है ये रहेगा मेरा सम ऑफ रूट्स है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसका मतलब मेरे दोनों जो रूट्स है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव दिया है, यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब मेरे दोनों पे रूट्स पॉजिटिव है। मेक सेंस। नेक्स्ट दिया है कि दोनों दोनों जगह पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे दोनों दोनों पे रूट्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। एनी केस में पॉजिटिव रूट जो भी रहेंगे, चाहे वो 0.0001 भी रहे, वो नेगेटिव से तो बड़ा होगा, सो नेगेटिव के दोनों रूट से बड़ा होगा, सो हियर I will see the A option and I will mark it. Okay. Let me quickly say this again. यहाँ पे मैंने माइनस देखा, या प्लस देखा, या प्लस प्लस देखा। माइनस प्लस देख के मैं समझ गया कि इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है। ये इसको देख के मैं क्विकली समझ गया कि इसके दोनों रूट्स नेगेटिव है। सो अब क्योंकि पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा रहेगा, आई विल मार्क द फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि माइनस पॉजिटिव माइनस प्लस। ओके, यहाँ दिया है माइनस प्लस ऐसा, और सेकेंड जो रूट है वहां पे भी माइनस प्लस दिया है। ठीक है, इसका मतलब अब इसके मेरे को रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है और इसके भी दोनों रूट्स पॉजिटिव है, और क्योंकि अब हो सकता है कि इसके दोनों रूट्स इसके दोनों रूट से बड़े रहे, या फिर इधर भी हो सकता है इसका एक बड़ा इससे बड़ा है, लेकिन इससे इसका एक रूट इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, या वाइस वर्सा, इसका एक रूट इससे बड़ा है इससे छोटा है। तो अब मेरे को इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा टू टू गेट एन आंसर, कि to get my final answer. So here I have to find my roots, because यहाँ दोनों जगह माइनस माइनस प्लस प्लस दिया है। So what I can do is I can quickly jot down the equation, which is 2x square minus 19x plus 42, and here it is 20. Here पहले मैं इसका रूट्स निकालूंगा। So 2 into 42 is 84, and 84 के रूट्स हो जाएंगे I guess 84 ना, या so 84 के रूट्स हो जाएंगे 12 and 7, या so 2x square minus 12x minus 7 42, so इसके रूट्स plus 42, so here it will be 6 and 7। अब मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने पूरा उसको नहीं लिखा कि 2x कॉमन किया, then x minus 6, फिर minus 7 कॉमन निकाला, x minus 6 सॉरी 7/2। यहाँ मैंने बस इससे मैंने असर्टेन किया कि हाँ 6 कॉमन निकलेगा दोनों रूट्स में, तो 6 इज द रूट ऑफ 6 एक पॉसिबल रूट है, और क्योंकि यहाँ 7 आ रहा है, और क्योंकि वो 2x माइनस 7 नॉट 2x माइनस 7 ऐसा है, so that will be my second root 7/2। I found both my roots। Similarly for my second equation 20y square minus 89y plus 99, here also मेरे को रूट्स निकालने, so 20 into 19 quickly, 20 into 99 will be
1980, or 1980 is equal to 44 into 45. So here I will write 20y square minus 44y minus 45y plus 19. Plus 19, and then I will again similarly take my roots and I will roots निकालूंगा, इनसे कंपेयर करूंगा and I will mark the relevant option and I will move on. ठीक है, इस सिनारियो में मेरे को दोनों रूट्स इससे निकालने पड़े क्योंकि यहाँ अगेन माइनस प्लस ऐसा दिया था, तो अपने को रिलेशनशिप पता नहीं चलता था एज कंपेयर टू दिस. इस क्वेश्चन में हमको दोनों रूट्स निकालने पड़े. कमिंग हियर थर्ड क्वेश्चन. So यहाँ अगेन रूट्स दिया है प्लस, यहाँ पे साइन ए को दिया है प्लस एंड माइनस, और दूसरा क्या है माइनस प्लस. सो इसका मतलब ऐसा है कि एक रूट नेगेटिव है और एक रूट पॉजिटिव है, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है और जो पॉजिटिव रूट है वो सॉरी जो नेगेटिव रूट है वो पॉजिटिव से बड़ा है, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन दी है. वो अपन जब ट्रेडिशनल इक्वेशन लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. अल्फा बीटा मेरे रूट्स के इक्वेशन है. तो अब यहाँ पे माइनस, यहाँ आगे प्लस का साइन, इसका मतलब जो नेगेटिव वाला रूट है वो पॉजिटिव से बड़ा है न्यूमेरिकली. नेगेटिव वाला रूट पॉजिटिव से बड़ा है. ये मेरा असर्टन हो गया. और दूसरा कंडीशन में क्या दिया है कि एक जगह नेगेटिव है एक जगह पॉजिटिव है, तो दोनों जगह के रूट्स पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे. अगर ऐसा कंडीशन आता है तो मेरे को फिर से रूट्स एक बार चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों जो रूट्स निकले वो इससे दोनों से पॉजिटिव है, तो y ग्रेटर देन x का कंडीशन बन जाएगा. अगर ऐसा नहीं बनता है तो नो कंडीशन कैन बी एस्टैब्लिश ऐसा आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा ही रहेगा, और क्योंकि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव से छोटा रहेगा तो वो नो कंडीशन ले कंडीशन आ जाएगी. ओके. अगर कभी ऐसा आता है कि इधर प्लस माइनस दिया है इधर प्लस माइनस दिया है ना, डोंट नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन इटसेल्फ, सीधा नो सॉरी नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश, ये वाला ऑप्शन मार्क कर देना. नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश, क्योंकि एक जगह पॉजिटिव है वो इससे तो बड़ा होगा, लेकिन वो इससे बड़ा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो नेगेटिव है वो इससे छोटा होगा ना. अब मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो पॉजिटिव रूट है वो इस नेगेटिव रूट से बड़ा होगा, लेकिन ये जो नेगेटिव रूट है ये इस पॉजिटिव रूट से छोटा है वाई के. सो इसलिए अपन एक्स और वाई का कंडीशन अपन असर्टन नहीं कर पाएंगे. इसलिए सो कभी भी अगर ऐसा कंडीशन आता है कि दोनों रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स मत निकालते बैठना, directly mark no relationship can be established in this type of questions. Okay. Moving on. Next is the approximations. इसमें क्या क्या करना होता है कि once again Viren, so there are a couple of students who always feel like quadratic equation को completely skip कर देना चाहिए क्या. We're also getting a questions like that. So for those students, one advice from my side would be obviously the techniques which Viren showed right now. You can maybe not entirely solve it, but using the the plus minus sign का rules, you can ideally solve at least 2 out of 5, and बाकी सब आप ऑप्शन से मार्क कर सकते हो. What would be your opinion, Viren? Should they skip quadratic? So generally don't, क्योंकि ये ना क्वाड्रेटिक क्या अगर आए तो तीन और चार क्वेश्चन एंड यू आर वेस्टिंग पोटेंशियल 3-4 मार्क्स इफ यू आर स्किपिंग दैट क्वेश्चन. सो और ऐसा व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन नो, सो जनरली दो क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही जो आप डायरेक्टली देख के ही एक शॉर्टकट से उसका आंसर निकाल पाओगे, उसका रूट्स भी नहीं निकालना पड़ेगा. सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन मे बी 10 to 15 सेकंड्स. अगर 10-15 सेकंड में प्री का एक मार्क मिल रहा है जस्ट बाय लर्निंग द शॉर्टकट, देन देयर इज नो पॉइंट इन स्किपिंग द क्वेश्चन. हाँ, अगर बहुत जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया था ये वाला 20y स्क्वायर माइनस 89y प्लस 99, तो हाँ इसका रूट्स निकालने में मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को 20 into 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उसके बाद 1980 जो मेरा नंबर है उसको मेरे को ऐसे उसको इसके रूट्स निकालने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा. सो या फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस मे बी यू कैन, अगर रूट्स निकालने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अगर डायरेक्टली साइन देख के समझ में आता है कि हाँ भाई एक जगह दोनों पॉजिटिव है दूसरी जगह दोनों नेगेटिव है, then don't skip the question. That would be my recommendation. Okay. Yeah. I hope this answer your questions. Yeah. And for students who have any doubts,
please ask your doubt in the chat. You can, in the 2K place where you can put everyone and you can ask the question over there. So Karthik has Right. raised his hand. I'd request you to please put up your question in the chat so we can read it out and answer. Yeah, Viren, you can continue. Sure. Also, if you have any doubts, I can solve them later also. ऐसा नहीं कि topic गया, so I will skip that. Uh, Next, approximations. In approximation, what you have to do, you have to simply calculate as fast as you can. इसमें दिया है 17.92 into 10.7. So let me write that down. 17, yeah, 17.92 into 10.7. So अब मेरे को 17.92 यानी into 10.7 नहीं करना, मेरे को इसको 18 कर देना है, because 17.92 is very close to 18. Similarly मेरे को 10.97 को 11 कर देना है. इसका ट्रिक होता है कि अगर नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 ऐसा दिया होता है ना, सो यू कैन अज्यूम दिस नंबर, जो नंबर मेरा डेसिमल पॉइंट के पहले है. जैसे कि इस केस अगर यहाँ 10.44 ऐसा दिया रहता था, so for calculation purpose, I can assume 10 here instead of instead of writing 10.44 and solving it. Similarly, अगर यहाँ 17.6 दिया है तो I can assume 18 here. तो more or less क्योंकि वो same ही हो जाता है. So this way I can approximate. I have to approximate the number. I have to quickly solve it and jot down the data. For example, यहाँ पे कहती है 17.92 into 10.7 minus 52.11. सो इस यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया इसको 18, इसको मैंने अज्यूम कर लिया 11. अब मैंने यहाँ क्या बोला था कि अगर 1 2 3 4 दिया है तो जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे क्या नंबर दिया, तो आई विल अज्यूम 52. 18 into 11 is 198 minus 52 146. दैट्स इट. इसको करने को लगना चाहिए 15 से 20 सेकंड. और 18 into 11 को बहुत ऐसा डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी नहीं करने को. दैट्स व्हाई. Similarly, going to the next question, 127.93. अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली जो मैं अप्रोक्सीमेट करने वाला हूँ डेटा, मैं वो लिखता हूँ. तो यहाँ पे मैं अज्यूम करूंगा इसको 128 into 4 minus 116 into 3. अब मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ये मेरे को अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना है. सो व्हाट आई कैन डू इज, अब मैं इसको मैं पूरा 128 into 4 नहीं करूंगा. मेरे को यहाँ 8 दिखा है, यहाँ 4 दिखा है. इसका मतलब एक चीज तो मेरा कंफर्म है कि जो मेरा यूनिट प्लेस में रहेगा वो 2 रहेगा. गॉट इट. यहाँ 8 दिया है, यहाँ 4 दिया है, इसका मतलब जो यूनिट प्लेस में यहाँ पे 2 है. सिमिलरली यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो यूनिट प्लेस में 8 आ गया है. ओके. 2 माइनस 8, लाइक अगर अगर यूनिट प्लेस में 2 और 8 रहता है तो इनका सब्सट्रैक्शन आता है हमेशा 4. या 4. सो आई विल क्विकली सी क्या ऑप्शन में कोई 4 ऐसा कोई नंबर है जिसका यूनिट प्लेस में 4 है. तो हाँ, एक ऐसा ऑप्शन है जिस जो है 164. सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 128 into 4 और उसके बाद 116 into 3 निकालने से अच्छा मैंने सिर्फ इसका यूनिट प्लेस निकाला जो आया 2, इसका यूनिट प्लेस निकाला जिसका जो आया 8, और उसका सब्सट्रैक्शन करके जो आया 4, और चेक किया कि ऑप्शन में है कि 164. दैट्स इट. गॉट इट. नेक्स्ट इज 15 आ गया. मैं पूरा नहीं करता हूँ, मैं उसका जो अप्रोक्सीमेट करूंगा मैं वो उतना पार्ट लिखता हूँ. 59.71%, that is 60%, that is 60 by 11 into 208 plus 216. Okay, so this is 424 I guess. Yeah. अब मेरे को क्या बोला है कि अब मेरे को इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर दिया है, तो मैं इस नंबर को देखूंगा 60% ऑफ 424. उसका भी अब वो जो नंबर आएगा वो किसी तो भी नंबर का स्क्वायर है. तो मैं पहले ऑप्शंस को देखूंगा. 33, अगर मेरे को 33 का स्क्वायर नहीं पता तो मेरे को एटलीस्ट ये पता है कि 30 का स्क्वायर होता है 900, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9. तो 33 का स्क्वायर होगा 900 से ज्यादा ही होगा. वैसे 1089 है, लेकिन 900 से ज्यादा ही होगा. यहाँ 424 दिया है, उसका भी 60% अपने को निकालना है. तो जाहिर सी बात है जो भी नंबर आएगा वो 424 से छोटा ही आने वाला है. 424 का
से छोटा आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ऐसे ऑप्शन देखूंगा, उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा जो जो 200 से 300 के रेंज में नहीं आते, जिनका स्क्वायर 200 से 300 के रेंज में नहीं आता है। तो उसके लिए मैं 333 को स्किप कर सकता, क्योंकि उसका स्क्वायर 900 से बड़ा है। सिमिलरली मैं 21 और 40 को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो स्क्वायर आएगा वो 400 से ज्यादा आएंगे। तो ये ना, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस, मैंने 5 में से 3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दिए। बस इतना लॉजिक लगा के कि बस इतना लॉजिक लगा के हाँ भाई, जो मेरा नंबर आएगा वो 250 260 के रेंज में आएगा। और क्योंकि ये 3 नंबर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उनका जो स्क्वायर है वो बहुत बड़ा आने वाला है। आई एलिमिनेटेड दिस 3 ऑप्शन। नेक्स्ट अब बचा सिर्फ 19 और 16। अब 19 20 के बहुत करीब है। 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 19 का स्क्वायर भी आएगा 361, लाइक 361 उसका स्क्वायर है। 19 का जो स्क्वायर आएगा वो इसके आसपास ही आएगा। और मेरा जो ये वाला पार्ट आ रहा है 60 × 60/100 × 424, वो 250 के आसपास आ रहा है। तो आई विल जस्ट सिंपली मार्क 16 सिंपली बाय सीइंग द ऑप्शंस। यहाँ मैंने इतना पूरा लिखा है, लेकिन जब मैं सॉल्व करूंगा ना, मैं सिर्फ ऑप्शंस देखूंगा। मैंने ये देखा 60/100 × 424, एक मैंने वैल्यू असर्ट कर दी कि ये जो भी आएगा ये 250 से 260 के आसपास कहीं तो भी आएगा। उतना असर्टन करने के बाद मैंने ऑप्शन एलिमिनेट कर दी और मैंने 16 को मार्क कर दिया। दैट्स इट। ना ही मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया इसको। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अंडरस्टूड? तो अप्रोक्सीमेशन में यही करना है। अप्रोक्सीमेट में पूरा इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, और उसको फटाफट फटाफट जितना अपन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने लिए। जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ मैंने सिर्फ ये देखा कि यूनिट डिजिट है, और उस बेसिस पे मैंने अपना आंसर निकाला। यहाँ मैंने सिर्फ ये देखा कि कितने नंबर का कितने ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूँ, उस बेसिस पे मैंने आंसर निकाल दिया। सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, बस एक कॉमन फॉर्मूला। आई गेस एवरीवन नोस दैट SI इज इक्वल टू P × N × R/100। और इससे और टोटल अमाउंट हो जाएगा जब मैं इधर अपना ओरिजिनल अमाउंट ऐड कर दूंगा। दैट विल बी माय टोटल अमाउंट। तो इस बेसिस पे मैं सिंपल बस ये एक फॉर्मूला अगर जम गया तो दैट्स इट। फिर और इसमें फिर फटाफट 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 कैलकुलेशन करना है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ईयर दिया है। फर्स्ट इज ओके, Deepika deposited 1,000 rupees in 2018, which was simple interest. Rate is increasing by 3%, and initially third. Okay, so यहाँ पे क्या दिया है कि दीपिका ने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, और हर साल वो 3% से बढ़ रहा है। तो बाद में वो 13% हो गया, बाद में 16 हो गया, बाद में 19 हो गया, बाद में 22 हो गया। ऐसा पूरा 9 साल तक जा रहा है। इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं ट्रिक यूज करूंगा। यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे फॉर्मूले में नंबर ऑफ ईयर्स तो है 9, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट जितना भी आया वो 9 से तो डिविजिबल होगा। अ, समझा? लाइक मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो 9 से डिविजिबल रहेगा। अ, हाँ सॉरी, मेरा जो नंबर ऑफ ईयर्स था वो 9 है, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा ना। तो व्हाट आई कैन डू, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस आई कैन जस्ट वो ऑप्शंस जो 9 से डिविजिबल है। Is 1880 divisible by 9? No, it's not, क्योंकि 1 + 8 + 8 is 17, which is not divisible by 9. Skip. Second क्या बोला है? 1890. Is it divisible by 9? Yes, it is. 1890 is divisible by 9. 1 + 8 + 9 is 18. Similarly, 2980. Is it divisible by 9? No, it is not, because 2 + 9 + 8 is 19. Similarly, 1790, which is 17. ऐसे ही मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। बस ये देख के, बस ये वाला 9 देख के मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है। ओके, अब क्या बोला है कि 10 से 10 to 13 का मेरे को सम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 9 साल का। तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 से जो एक मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है 10 13 16 19 का, उसका मैं टोटल सम निकालूंगा, विच विल बी 9/2 × 10 + 25 28
25, 27, 34. Yeah, 34. So that this will be around 9 into 22, 198. मैंने अब क्या किया, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले, अब मैं कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ 9 साल का, जो आ रहा है मेरा 198। 190 इतना भी कैलकुलेशन अगर नहीं करना है तो मैं सिर्फ ये देखा, मैं 9/2 इंटू 44, ये मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है, विच इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 विच इज नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट टर्म है, फर्स्ट टर्म विच इज 10 और लास्ट टर्म विच इज 34, जो आया मेरा 44। मेरे को ये पता है कि 44 11 से डिविजिबल है, तो और मेरा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इसका मतलब ये है कि मेरा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 11 से डिविजिबल रहेगा। तो अब मेरे जो दो ऑप्शन बचे 1890 और 1980, इसमें सिर्फ मैं ये चेक करूंगा कि इन दोनों में से 11 से डिविजिबल कौन है। इज 1980 डिविजिबल बाय 11? नो इट्स नॉट, क्योंकि 1 + 9 = 10, 8 + 0 = 2, वो 0 नहीं आता, इट इज नॉट, एंड 1980, so it is divisible by 11, so this is my answer, because 1980 is divisible by 9। एक बार मैं खुद समझ देता हूँ, पहले मैंने ये चेक किया कि 9 से क्या क्या डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ ईयर्स 9 है, और इस बेसिस पे मैंने चेक कर, मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। सेकेंड, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला और देखा कि वहाँ 44 है, लेकिन मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला भी नहीं है, मैंने सिर्फ ये देखा है कि वहाँ 44 है जो 11 से डिविजिबल है। तो सिमिलरली मैंने फिर ये ऑप्शन में ये चेक किया कि 11 से डिविजिबल वाले ऑप्शन कौन से, मैंने वो चेक किया, और फिर ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करके 1890, और सिमिलरली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल गया। ओके, इसको मैं पूरा सॉल्व कर सकता हूँ और उसमें मेरा आंसर आ भी जाएगा, लेकिन पहले मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसको उनको एक फॉर्मूले में डालना पड़ेगा। इंस्टेड मैं सिर्फ ये देखता हूँ, वो जो डिविजिबिलिटी वाला चेक करूंगा, आई विल गेट दिस आंसर इन मे बी 40 सेकेंड्स, क्योंकि मेरे को रेट निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो 40 seconds में आई विल गेट माय आंसर, दैट्स इट। cool, so moving on, next is another simple interest question. Ryan invested this sum, 5%, 12% is the total interest is this। तो इस काइंड ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है ना, कि अगर बोला है कि एक स्कीम में x अमाउंट इन्वेस्ट किया है और दूसरे स्कीम में y अमाउंट इन्वेस्ट किया विच इज इक्वल टू z, तो वो लोग ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे कंफ्यूज करने के लिए, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर आता है जेड है मेरा 50, और अगर मेरे जस्ट फॉर एग्जाम्पल से, How did you get 11 in the last step? हाँ, सो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा एक हर 3 साल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था, 10, 13, 16, 22 ऐसा उन्होंने मेंशन किया था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया, क्योंकि सिंपल प्रोग्रेस, सिंपल इंटरेस्ट है, तो आई कैन गेट द कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, जो आएगा 9/2। ये मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ये 9 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज माई फर्स्ट टर्म 10, एंड दिस इज माई लास्ट टर्म विच इज 34। 34 विल बी ऐसा पूरा सी लिख दिया, चलो ये पूरे 9 का सीरीज बन गया। ये है मेरा लास्ट टर्म, ये है मेरा फर्स्ट टर्म। ओके, अब ये हो जाए, ये मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया और ये आ गया 44। इतना मेरे को पता है कि 44 इज डिविजिबल बाय 11, पक्का। और अब मेरा ये रेट मेरा कुछ भी आए, इट डजंट मैटर, क्योंकि एट द एंड फॉर्मूले में पढ़ना तो यही वाला ना, 9/2 इंटू 44 इंटू 9, ये मेरा नंबर ऑफ ईयर्स वाला 9, और यहाँ पे मेरा जो सम है, जो मेरा अपना प्रिंसिपल अमाउंट है। तो मेरे को एक चीज समझ कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। तो मैंने सिर्फ ये चेक किया कि ऐसे ऑप्शन जो 9 से डिविजिबल है, मेरे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर मैंने ये चेक किया कि कौन से 11 से डिविजिबल है। 11 मेरा कैसे आया था, ये 44 से। 44 मेरा कैसे आया, कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के, जो 9 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाल के। तो फ्रॉम दैट मैंने दूसरा वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया, जो मेरे दो बाकी बचे थे। ओके, Yeah. सो दिस क्वेश्चन आई वाज सॉल्विंग। सो इस क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि जो जितना भी अगर कंबाइंड 50,000 दिए, तो वो कंफ्यूज करने के लिए 20,000
और 30,000 डाल ही देते हैं ताकि वी एज ए स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज। तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल ऐसे ऑप्शंस मैं चेक करूंगा जिनका टोटल 49,000। तो ये 34,000 को 15,000 है, नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, सीधा एलिमिनेट, क्योंकि 15,000 तो है नहीं। सेकेंड दिया है 19,000 और उसके लिए 30,000 दिया है, ठीक है पॉसिबल। और एक ऑप्शन दिया है 35,000 और एक ऑप्शन दिया है 14,000। तो 35,000 और 14,000 विच मेक्स 49,000। मैंने क्यों 35 और 14 को कंसिडर किया और 30 और 19 को अभी के लिए कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि जो मेरा सम ऑफ इंटरेस्ट जो टोटल है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, वो 49,000 वो 7 से डिविजिबल है। ओके। और जो मेरा प्रिंसिपल इंटरेस्ट, जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है टोटल इंटरेस्ट, वो भी 7 से डिविजिबल है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मेरा आंसर आएगा ना वो भी 7 से डिविजिबल ही होगा। और ऐसे दो ही ऑप्शन, 35,000 एंड 14,000। तो बस मेरे को अब क्या करना है, 35,000 को इन्वेस्ट करना है 5% के हिसाब से, और 14,000 को इन्वेस्ट करना है कितना परसेंट है, 12% के हिसाब से। और बस मेरे को इधर का समझो आएगा वो मेरे को चेक करना है कि 4900 आता है कि नहीं। अगर 1400 आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो यहाँ मैं 14 रख दूंगा या 35 रख दूंगा। 14 5% के हिसाब से और 35 12% के हिसाब से। देन आई विल चेक कि 1400 आता है कि नहीं। अगर वो आता है देन आई विल गेट माय आंसर। एंड आई एम प्रीटी श्योर लाइक दिस इज शॉर्टकट व्हिच आई यूज्ड टू गेट, कि अगर जो नंबर मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और जो मेरा इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, अगर वो दो नंबर किसी पर्टिकुलर इंटीजर से डिविजिबल है ना, तो जो मेरा अमाउंट रहेगा वो भी उसी नंबर से डिविजिबल रहेगा। सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग और यू नो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द एंटायर इक्वेशन, मैंने सिर्फ इतना चेक किया कि कौन से नंबर को मैं यूज कर सकता हूँ, और उसको मैंने अकॉर्डिंगली वहां पुट किया और अपना आंसर निकाला। ओके, तो मूविंग ऑन अगेन, एक क्विक तरीका, यहाँ मैंने 49,000 देखा, यहाँ मैंने 1400 देखा, मेरे को इतना पता है दोनों 7 से डिविजिबल है। मैंने ऐसे ऑप्शन देखे जो 7 से डिविजिबल है प्लस जिनका टोटल 49,000 आता है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए वहां पे ऐसे रखते ही है। तो और बाद में मैं आगे चलेंगे। ओके, एंड और उसको सॉल्व करके आई गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, नेक्स्ट। Yeah, also one student is asking, what if the options are really close? So if the options are really close, ideally, Ankur, you can, the you have to understand if the options are really close, it's a trap question because you will have to solve it entirely in a proper manner. But when the options are far away, you can use a method wherein you can do a shortcut trick, use a shortcut trick, or you can approximate. That will help you. So it's all about selecting the right question. If the options are really close, you have to understand that you'll have to solve it. What would be your opinion on this, Viren? What if the options are really close? How do you go about it? Yeah, agreed. अगर options are really close, then I think you have to solve it. Because because ऐसे questions में because we don't get the right answer just by approximation. So to get the right question or to get the right answer, we have to solve it entirely. Or अगर else we can बहुत skip it. If the question is, taking more than the required amount of time, I would yeah, probably go with that option. If the options are really close, I take one decision. Can I solve it in the required amount of time? If no, then I will skip it. yeah. Like if you guys remember the previous session which I had, if what I used to do was if some of you were in the mock solving session, I used to read the question पढ़ता था, एक जजमेंट लेता था कि वो मैं 30-35 सेकंड्स में कर सकता हूँ कि नहीं। अगर हाँ तो देन आई वुड अटेम्प्टेड इट क्वेश्चन, देन आई वुड हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा लेता है तो उस पे एटलीस्ट स्टार्टिंग के 70-80 मिनट्स अटेम्प्ट करना वर्थ नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको स्टक हो जाता हूँ ना तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आता है, डीमोटिवेशन भी होता है। तो इंस्टेड फर्स्ट हाफ में तो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन एज यू कैन, इजी क्वेश्चन एज मेनी एज यू कैन, जो फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाए, एंड देन गो टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू सॉल्व। Yeah, ओके। this is actually a really, really good advice for a lot of students because you have to see it is all about decision making, not about solving easier question or difficult question. You get the same marks if you solve an easy question or a difficult question. So decision making is really important. Yeah, Viren, go ahead.
So next is some other simple interest at 27. Okay, and we have to find the sum. अच्छा ठीक है. Okay. So here मेरे को combine amount दिया है, which is 2502.5, और उसको बोला 27/2 is my rate of interest, and that too after 4 years. So here what I can do is again similar. I can skip this option. The third option 2502, क्योंकि अगर अमाउंट 2502 है तो 4 साल बाद 27 आई मीन 27/2 विच इज 13.5%. 13.5% इंटरेस्ट पे सिर्फ 50 पैसा तो बढ़ने नहीं वाला, विच इज वेरी मच कॉमन सेंस. सो आई कैन skip this ऑप्शन. सेकेंड आई कैन चेक इज कि ये जो नंबर है 2502 ये कितनों से डिविजिबल होता है, विच इज 2502 by 5, which is equivalent to 5,5005, if I'm not wrong. Yeah, 5005 जो है ये 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, या और 5 से डिविजिबल है. सो मेरा जो पीरियड रहेगा, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, उसको मैं फटाफट चेक करना चालू करूंगा कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं. अगर 5 से डिविजिबल है तो या 13 तीनों ऑप्शन मेरे 5 से डिविजिबल है. सो इससे मैं कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा. या सॉरी, इससे मैं कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा. सेकंड में चेक करूंगा 7 से, और उसके बाद में 1345 और उसके बाद 1825. आफ्टर चेकिंग इट आई विल गेट माई, अगर आई विल सी कि वो उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है. एंड अगर वो नंबर से डिविजिबल नहीं है तो देन आई कैन skip that, and I can get the correct answer. और instead instead I can, अगर फिर भी थोड़ा difficult पड़ता है, then I can also go write the entire formula, solve this kind of question, because and then I will get my answer. This will take around 1 minute even to me, because यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ पे कंबाइन अमाउंट दिया है. यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दिया है, प्लस इंटरेस्ट विच इज 2502. So instead I can also completely solve this kind of question. Okay. So moving on, percentage. Yeah. यहाँ क्या बोला है कि number of seats in auditorium have increased by 25. Okay. So इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करता था, मैं अज्यूम कर लेता था कि प्राइस है 100 और सीट भी है 100. ओके. अब अगर सीट 20% 25% उससे बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 112. ठीक है. और रेवेन्यू कलेक्शन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 140, विच इज 40% द आंसर. इसके लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड दिस 125, और उसको मैं 112 से मल्टीप्लाई, उसका मैं 12% फाइंड कर सकता हूँ. लाइक 125, इसका मैं 12%. ठीक है. लाइक इंस्टेड यू कैन डू फॉर दिस मेथड ओनली. अज्यूम के 1 is 100. डोंट राइट द एंटायर इक्वेशन के एक ए है एक बी है, ये बढ़ रहा है 25% से तो 1.25 ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा 1.12. डोंट डू दैट. इंस्टेड अज्यूम ए को 100, बी को 100, क्विकली मल्टीप्लाई जो आ जाएगा 100,000, इनका मल्टीप्लिकेशन क्विकली मल्टीप्लाई 125 by 112, इनका मल्टीप्लिकेशन इनका आ जाएगा 140, and I can see the difference. Here I can instead of using any shortcut, I can quickly multiply them to see if I to get my answer. Okay. To do यहाँ पे अगर मेरा कैलकुलेशन का स्पीड अच्छा है तो then I can solve this kind of questions in maybe 15-20 seconds. That's it. The only after like if calculation speed is up to them, and that's why I will recommend to all of you also कि in quants, concept knowing is very important, but try to increase your calculation speed as much as you can, because ये quants में भी help करेंगे, और DI is completely calculation based, so you can get an upper hand in DI as well.
Next, then it is required to be 290, 203. Okay. So यहाँ क्या बोला है कि स्टूडेंट को 290 का स्कोर मिला है, या 290 स्कोर मिला है, 290 इज रिक्वायर्ड टू पास, और उसको 203 मार्क मिले, और ये वो 12% से फेल हो गया है. ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज, मेरे को ये 29 into 10 है, ऐसा मेरे को सही सही दिख रहा है. यहाँ मेरे को दिख रहा है कि ये है 29 into 7. तो ये दोनों नंबर्स में 29 कॉमन है. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं ऐसे ऑप्शन को देख सकता हूँ जो 29 को डिवाइड कर सके. तो 775 डिवाइड बाई 29, मैं पहले ये चेक करूंगा. विल इट बी एबल टू डिवाइड 29? नो, देन इट इज नॉट माय आंसर. सेकेंडली मैं ये चेक करूंगा कि 750 को मैं 29 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या. इफ आई एम एबल टू डू दैट, देन इट इज माय आंसर, देन एल्स नॉट. थर्ड मैं ये चेक करूंगा 725 is divisible by 20. Yes, it is divisible by 25. 29, ये आ जाएगा 25. So this is my answer. Instead of writing the equations, के टू इक्वेशन लिखने के अलावा मैं सिर्फ ये देखा कि 29 से क्या डिविजिबल है. वो भी क्यों? क्योंकि 290 इज इक्वल टू 29 into 10, 203 इज इक्वल टू 20 into 7. तो मेरे को एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मेरा जो भी आंसर है वो 29 से डिविजिबल है. अब मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि जो मेरे को ऐसा ऑप्शन निकालना है जो 29 से डिविजिबल है, and I will get my answer. Okay. So next. So this students are asking about how did 5005 come? And That this was is the second. Yeah. in the this question, in the Yeah, supplementary. this question. Yeah. So here 2502 at this is equal to 5005 by 2. By this way I was able to ascertain कि ये 5005 जो है था, it is when we divide 5005 by 2, we get this number. From that I was able to get 5005. Yeah, we can move ahead. So next is this. This income of A is 20% higher than that of B. Income of B is 25% less than C. B is 25% less than C. What percent less is A's income from C's income? Okay. So what I can do is, मैं assume कर सकता हूँ कि A का income है 100, और उससे मैं B का income निकालूंगा, उससे मैं C का income निकालूंगा, and from that I will get my answer. Like here it is 20% than B, so it will be, instead I can keep B as 100 because मेरे को B के पर्सपेक्टिव से उसको 20% हायर रखना है. So what I will do is I will keep B as 100, जिसको मैं रखूंगा 120. और अब क्या बोला है कि the income of B is 25%. 25% not from the perspective of C, but from the perspective of, not from the perspective of B, but from the perspective of C. इसके पर्सपेक्टिव से मेरे को देखना है कि 25% कितना होगा. सो उस C के पर्सपेक्टिव से अगर ये 100 है तो ये 75 होगा. अब क्योंकि ये 75 नहीं है, ये 100 है, तो ये हो जाएगा 133.33. लेट मी रिपीट अगेन. मैंने B आया 100, B का इनकम C से 25% कम है, ठीक है, लेकिन जो 25% कम है वो B के से नहीं है, वो C के रीजन से कम है. सो व्हाट आई कैन डू इज, लाइक जब B का वैल्यू 75 होगा ना, तब C का वैल्यू 100 होगा. C के इससे वो 25% कम है, लेकिन B का वैल्यू 75 नहीं है, B का वैल्यू 100 है. सो उसके अकॉर्डेंस में मैंने C का वैल्यू निकाला, और उसके अकॉर्डेंस में मैंने A का वैल्यू निकाला. A का वैल्यू आया मेरा 120, C का आया वैल्यू आया मेरा 133.3. अब क्या बोला है कि what percentage is B's income less from C's income? अगेन यहाँ पे C के पर्सपेक्टिव से A का कितना कम है, मेरे को ये चेक करना है.
So what I can do is 133.33 मेरे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव हो जाएगा. So what I can do, I can multiply 120 by 3, which is 360, and 133.33, which is 400, approximately 400. मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए. 133.33 माइनस 120 अपॉन 133.33 ऐसा करना पड़ जाएगा. सो दिस इज अ बिट कैलकुलेशन डिफिकल्ट फॉर मी. इसलिए मैंने 133.33 को अप्रोक्सीमेट कर दिया 400 पे. और क्योंकि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ए को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, विच इज 360. अब मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि ये 40 का डिफरेंस है, यानी 10% आ रहा है. ओके. ये मैंने ये वाला अप्रोच इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को यार 13.33 अपॉन 133 ये थोड़ा सा मेरे लिए भारी पड़ जाता है एज कम्पेयर टू दिस. दैट्स व्हाई आई जस्ट लाइक ये क्लियरली दिख रहा है कि 10% है. बट व्हेन यू गेट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस नो कि वी आर नॉट एबल टू what you can do, you can approximate them by multiplying or dividing them accordingly. That's the point I'm trying to make here. Okay. Next, this is so next is boards and schemes. Again, boards and schemes is very similar to time, speed and distance. यहाँ पे बस ये करना है, लाइक वेस्ली का फॉर्मूला अप्लाई करना है. स्टिल वाटर को एक वेरिएबल असाइन करना है, और ये वाली अपनी स्टिल वाटर को एक वेरिएबल असाइन करना है, और ना जो स्पीड ऑफ बोट है उसको एक वेरिएबल असाइन करना है, एंड आई विल गेट माय आंसर. So here it is ratio of speed of boat in still water. Let into words and find out. ठीक है. So first condition क्या दिया है कि speed of boat in still water, this is x is in still water, and sorry, this is speed of still water, and y is. तो ये अगर मैं रहता तो मैं फर्स्ट इसका तो इसको स्किप करता था. सेकंड इटरेशन पे फिर मैं इसको पूरा इक्वेशन के साथ सॉल्व करता था. सेकंड इस पे ये हो जाएगा मेरा स्पीड ऑफ बोट. अब क्योंकि अपस्ट्रीम है तो अपस्ट्रीम के लिए x प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई. फर्स्ट बोला है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विच इज x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम विच इज, आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक. अगर इसको डाउनस्ट्रीम में हो जाएगा 224/4 इज इक्वल टू x प्लस वाई, 56 इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम है ना x प्लस वाई. अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, नो विच करेक्ट, सॉरी. इससे मेरे पास x प्लस वाई, मेरे को ये कंडीशन दिया है 224 ट्रेवल डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स. डाउनस्ट्रीम है, इसका मतलब x प्लस वाई आ जाएगा, स्टिल वाटर प्लस बोट. आई गॉट आई गॉट द सम ऑफ बोथ द स्पीड्स. एंड उसके बाद क्या बोला कि वो दोनों स्पीड का रेशियो है 5:2 के रेशियो, यानी कि 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 56. ये दोनों का रेशियो है, x इज इक्वल टू 8. और इसके बाद बताया ना डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ still water, and I will get my answer. I will skip this question for now because I think I made some mistake in here. I will come back later. Skipping this topic for now. Average. I will come back to this Bolton scheme again. First बोला है averages again calculation heavy question. तो first क्या बोला है कि first code is and ठीक है. तो एक बार मैं क्वेश्चन को स्पीड रीड करूंगा और मैं ये लास्ट 2 लाइन पे फोकस करूंगा. ये जो लास्ट 2 लाइन है, if the temperature of first and fifth day were in the ratio of 5:7, यानी कि 5 तारीख और जून का बोला है, और मेरे को बोला है कि 5th ऑफ जून को टेम्परेचर क्या रहेगा. तो मेरे पास फर्स्ट एंड फिफ्थ का रेशियो दिया है 5:7.
इसका मतलब फिफ्थ का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो 7 से डिविजिबल रहेगा। लेट मी टेल अगेन, फिफ्थ का जो भी टेम्परेचर रहेगा वो 7 से डिविजिबल रहेगा। ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली ऑन 5th of June। तो बेसिकली मेरे को 5th of June का टेम्परेचर निकालना है। तो मैं एक बार ऑप्शन स्कैन करूंगा, ऑप्शन 36, 30, 40, 42 और नन ऑफ दिस। ओके, सो ऐसा एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिविजिबल है, विच इज 42। ओके, तो इसको मैं साइड में लूंगा और इसके हिसाब से मैं बाकी कंडीशंस चला के देखूंगा। इसके हिसाब से जो मेरी बाकी कंडीशंस दिया है उसको मैं कैलकुलेट करके देखूंगा। सो फर्स्ट डे का आ गया, या फिफ्थ डे का आ गया 42, फर्स्ट डे का आ गया 30। अब क्या बोला है, फ्रॉम फर्स्ट फोर्थ का एवरेज होता है 208। तो 1 + 2 + 3 + 4 हो जाएगा 208, और उसमें से मैं फर्स्ट डे का हटा देता हूँ, दैट इज 178। ये जो है ये मेरा पहले 4 दिन का सम है, जिसमें से मैंने पहले दिन का हटा दिया। जो मेरा जो 30 आया था, फर्स्ट डे का मेरा 30 आया था, फिफ्थ डे का 42 आया था, तो इसमें से मैंने 30 हटा हटा दिया, दैट इज 178। ये मेरे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ डे का सम आ गया। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ का सम आता है, एवरेज है 55, विच इज जिसका सम हो जाएगा 220। ओके, सेकंड, अब मेरे ये जो 178 है ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ का सम है। मैं इसको इससे माइनस करता हूँ, 220 माइनस 178, विच इज 42। आई गॉट माई आंसर। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अज्यूम किया कि हो सकता है 42, एक 42 डिग्री का आंसर हो सकता है। वो भी मैंने अज्यूम क्यों किया, क्योंकि जो फिफ्थ डे है उसका रेशियो है 5:7, इसका मतलब वो 7 से डिविजिबल है। तो मैंने 42 इसलिए assume किया, और मैंने बाकी का कैलकुलेशन भी इसलिए किया है क्योंकि यहाँ नन ऑफ दिस ऑप्शन दिया। अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया रहता था ना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर कुछ दिया रहता था 34, 39 ऐसा कुछ, तो मैं डायरेक्टली 42 को मार्क करता था और मैं आगे चले जाता था। इस ये मार्क, ये बस इतना करने में मेरे को 10 सेकंड लगता था, दैट्स इट। मैंने 42 को इसलिए मार्क किया क्योंकि इसलिए चेक किया क्योंकि वहां पे नन ऑफ दिस ऑप्शन दिया था। एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट। ये एक शॉर्टकट विच आई वुड हैव यूज्ड इन माय सीईटी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, सो इसको क्विकली, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी बोला है। ओके, अब पहले ये रेशियो को देखो, एबीसी के रेशियो को देखो। ये है 3:4:2, ये एबीसी का रेशियो है। ओके, इसका सम जो आता है ये आता है कंबाइंड 9। तो इसका मतलब ए का, बी का और सी का वैल्यू 9, तीनों वैल्यू 9 से डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि ये 3 + 4 + 2 आता है 9, विच इज इक्वल टू 9। तो ए बी सी का वैल्यू जो भी रहेगा 9 से डिविजिबल रहेगा। सेकंड बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिट ऑफ ए एंड सी। अगर इनका, अगर ये तीनों नंबर, दोनों तीनों नंबर ए से डिविजिबल है, तो इनके जो डिफरेंस रहेंगे, अगर ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ये भी 9 से डिविजिबल रहेंगे। तो मैं ऐसा ऑप्शन चेक करूंगा जो 9 से डिविजिबल है, विच इज 45, एक ही ऑप्शन है। आई विल मार्क दिस 45 एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 40, अगर ऐसे दो ऑप्शन दिया रहता था, 45 एंड 36, तो मैं एक बार चेक कर लेता था पूरा पूरा क्वेश्चन 45 के हिसाब से और 36 के हिसाब से। अगर वो होता है तो ठीक है, और एल्स आई वुड हैव मार्क 45 एंड आई मूव ऑन। इसको मैं पूरा सॉल्व करता था, विच इज ऑल्सो पॉसिबल, जिसमें मैं पहले एबीसी का वेट निकाल रहा हूँ, विच इज 65 इंटू 18 माइनस 60 इंटू 15। ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गिवन कंडीशन के हिसाब से 60 to 65 इंक्रीज हो रहा है। तो हाँ, दिस ऑल्सो वी आई कैन सॉल्व कम्प्लीटली ऑल्सो, लेकिन क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि वो दोनों 9 से डिविजिबल है, मैंने सिर्फ वैसा वाला ऑप्शन मार्क किया जो 9 से डिविजिबल है, एंड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन वेजेस। दिस शो, मैं बार बार डिविजिबिलिटी का यूज इससे करता हूँ क्योंकि मेरा कैलकुलेशन उससे बहुत फास्ट होता है। लेकिन मेरे को पूरा इक्वेशन नहीं बनाना पड़ता है, मेरे को पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वो सब नहीं करना पड़ता। मेरे को सिर्फ ऑप्शन देख के वो
मेरे को सिर्फ उतने ही ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और अगर एक ही ऑप्शन दिया है जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं सिर्फ उसी ऑप्शन को मार्क करूंगा। अगर मैं ये वाला पूरा सॉल्व करते बैठता था तो मेरे को लगता था 1 मिनट, लेकिन मैंने सिर्फ ये देखा कि वो 9 से डिविजिबल है, ये मैंने चेक किया और मैंने नेक्स्ट ऑप्शन मार्क कर दिया, मैंने करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया। ओके, सो मूविंग ऑन। प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है। प्रेजेंट एवरेज एज किया इतना 20%, ठीक है। ये तो पूरा आई थिंक आई गेस सॉल्व भी करना पड़ेगा। और या आई गेस ये पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज a प्लस बी विच इज 12x माइनस 30 क्योंकि एवरेज दिया है। सेकेंड इज a प्लस बी प्लस सी, इसको और इसका भी एवरेज दिया है 4x प्लस 6 विच इज 12x प्लस 18। इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया 12x माइनस 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 12x प्लस 18। सी का वैल्यू आ गया 48, और फिर कंडीशन के हिसाब से इसको इससे मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया विच इज 25% लेस देन सी। तो इसका 25/36 हो जाएगा, और 20% मोर देन यानी कि 30 हो जाएगा। 30 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट मी क्विकली समराइज। ए प्लस बी का एवरेज दिया था वो है जो तो कम इनका सम आ गया 12x-30। ए प्लस बी का सी का एवरेज दिया था वो आ जाएगा ये इतना। मैंने ए प्लस बी का वैल्यू डाला यहाँ से, सी का वैल्यू निकाला 48, और फिर बी जो है वो 25% लेस है, सॉरी सी से तो वो आ गया 36, और ए जो है वो 20% लेस है तो आ गया 30। दैट्स उसको मैंने फटाफट सॉल्व किया, आई गॉट माय आंसर एंड मूव ऑन। और नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अमोन एंड चार इज 3:4, ठीक है। और विवान से अच्छा, अब इसमें मैं और एक शॉर्टकट जो मैंने अभी यहाँ जो मैंने शॉर्टकट यूज किया था ना, ये वाले क्वेश्चन में सिमिलर शॉर्टकट में यहाँ यूज करूंगा। यहाँ क्या बोला है कि अमोन और चांद, इनका एज है 3:4 के रेशियो में, और इनका एवरेज अपने एज अपने को निकालना है। सो इनका इनका जो एज है वो 3:4 के रेशियो में, तो एवरेज जो रहेगा वो रहेगा 3+4/2, 3/5 के रेशियो, यानी कि 3/5 से डिविजिबल रहेगा। और थ्री थ्री 3/5 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 3/5 जो मेरा आंसर रहेगा वो 3/5 से डिविजिबल रहेगा। दैट्स व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। तो मैं चेक करूंगा ऐसे ऑप्शन जो 3/5 से डिविजिबल है। ऐसा मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है 14, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं फटाफट गिवन कंडीशन के हिसाब से जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से इसको चेक कर सकता हूँ। और अगर और मैं इसको चेक कर लूंगा 14 के हिसाब से पूरी कंडीशन को। अगर 14 दिया है तो अमन का हो जाएगा 6, चांद का हो जाएगा 8। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया? द रेशियो ऑफ गिवन्स एज यानी कि B+5, ये 2, चांस एच 1, ये लाइक इसका रेशियो मेरे को दिया C-1 इज इक्वल टू 4/3, और एंड 4 टाइम्स the difference between this. और दूसरा कंडीशन दिया है कि 4 टाइम्स C-A इज इक्वल टू 1 मोर देन एज ऑफ वुमन। ये मेरे को दो कंडीशन दिया है, ये मेरे को दो कंडीशन थी। मैं क्या करूंगा, अगर मेरे पास टाइम बचा है तो मैं क्विकली इसको चेक करूंगा। मेरे पास इसका एज है, इसका एज है, तो ये हो जाएगा 4। चांद का एज है 4, अमन का 3, 4-3 विच इज 1। विवान का एज हो गया 3। वही मैं यहाँ क्विकली डाल के चेक करूंगा। विच इज ऊपर का हो गया 8, नीचे का हो गया और क्या बोला था, आफ्टर 5 years एंड चांद एज है। हाँ, और चांद का एज है, विवान का एज है 3। ओके, और चांद का एज है 8। ठीक है।
ठीक है. So I will quickly check this. I will quickly check this ratio. अगर वो ratio नहीं आ रहा है तो इस केस में नहीं आ रहा है. So I will mark none of this. I will mark none of this. अगर वो accordingly मेरा condition satisfy नहीं कर रहा है तो satisfy check में जो मैंने trick लगाया था कि 3/5 divisible है, इससे मैं check भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि none of this option दिया है. अगर none of this नहीं दिया रहा तो मैं directly 14 को mark करता था and I would have moved on. That's the point. लाइक मेरे को इसको लाइक ये जो मैंने दो इक्वेशन बनाए थे, ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन और जो एवरेज का इक्वेशन बनता था 1a/3 3:4, ये तीन इक्वेशन मेरे को बनाने नहीं पड़े. मेरे को सिर्फ एक इक्वेशन से चेक करना पड़ा और मेरे को आई गॉट माय आंसर. ओके, सो नेक्स्ट. Viren, in the second question of averages, students are saying answer is 30 and not 45. Yeah, this one. ओके, लेट मी चेक. सो का पूरा ही कर लेता हूँ. 65 into 18 which is 1170 and 16 into 15 is 900. 270 का ये बनता है 3:4. 3:4:5 which is 190, 120 और 60. ओके ओके ओके, ठीक है. सॉरी, माय मिस्टेक. ठीक है, करेक्ट करेक्ट. या द पर्सन हु सॉल्व्ड दिस करेक्ट. इट्स 30. So this is the trick I used to use. Not very like I made a mistake this time, but this is a shortcut which I would have used it for if like I used to when I used to attempt my paper. This is also like you can also solve it completely. I can get the combined age which is 1170. Then I can get the age without A, B, and C. I can find the difference and I can split them according to the ratio. This is also what we can do. ठीक है. Next, probability. So this is like an important topic. 35 balls, red, blue, and pink. 35 balls DI, red, blue, and pink. And ratio pink ball का probability दिया 3:7. So pink is 15 and red is in the ratio of यानी कि ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8. So what is the two balls pick करना है. One is orange, red, not blue, orange. So that is 8C1 into pink 15C1 upon 23C2. ठीक है. सो यहाँ पे क्या दिया है कि 35 बॉल्स बोला और पिंक का प्रोबेबिलिटी क्या दिया है 3/7. तो उसके हिसाब से मैंने पिंक का नंबर ऑफ बॉल्स निकाल दिया. सेकेंड, फिर जो जितने बॉल्स बचे 20 बॉल्स वो रेड और ऑरेंज के बीच में है और उनका रेशियो क्या दिया है 3:2. तो सिमिलर वैसे मैंने रेड और ऑरेंज का नंबर ऑफ बॉल्स निकाल दिया. उसके बाद अपने को क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 balls are picked. Total is 35. 35 number of balls given is 35. So 35C2 is वही से मैं 2 balls निकाल सकता हूँ और उसके बाद जिसमें से कंडीशन है कि one is orange and one is red. So I can then solve this equation and get my answer. This way I would have solved this probability question. 8C1 is 120, 8C1 is 8, 15C1 is 15, and this is 35 into 34/2, which is 35/7. 35/7 से ये 24. 24/117 is the answer. Yeah, correct. This one, and I would have then gone to the next question. Second, 3 children, respective probability, and at least one will finish the race. So, either is this kind of question, like, let me read the question. 3 children are participating in the G3 probability 1/3, 1/5, 1/4,
एंड मेरे को ये फाइंड करना है कि एटलीस्ट एक जीतता है रेस। तो सिंपल, मैं क्या करूंगा कि मैं एक माइनस कर दूंगा, कोई भी रेस ना जीते। दैट लाइक, अगर कंडीशन क्या है कि ए जीतता है, बी हार गए, या फिर बी जीत गया, सी हार गए, इतना तीनों कंडीशन निकालने से अच्छा मैंने सिर्फ इतना देखा कि वन माइनस तीनों हार गए, मैं उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा। और मैं उसका प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा विच इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ which will be similar to that, at least one of them have won the race, and I will get my answer instead of solving each and every like scenario, getting answer for each and every scenario. I just found out that scenario which was the important one, like in which for which at least one of them finishes. I will take a 2 minute break, then I will do that. Just give me 2 minutes. Meanwhile, guys, if you want to ask any kind of question, you can ask me. I will answer them. Anything related to strategy for quants or any such questions, or you can join back in 2 minutes. Yeah, Karthik, can you please put your question in the chat? And the recording for the session will be provided you on the login ID, the TTP students login ID. Yeah. So I will just have to do some work. Yeah. 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 So next is 21 balls. ठीक है, तो 21 balls बोला है and without replacement. So 21, one a ball is down and another ball is in. So what I can initially there are 21 balls. Without replacement I am drawing the ball. So first condition में मेरे पास 21 ways में मैं बॉल अपने बॉल को निकाल सकता हूँ। सेकंड कंडीशन में अब क्योंकि एक बॉल निकाल दिया है, तो अब बचा 20 बॉल्स। तो अब 20 बॉल्स में से मैं उसको 21 वेज में और इधर 21 वेज में मैं अपना बॉल निकाल सकता हूँ। तो मेरा जो सैंपल स्पेस हो गया वो 21 into 20 आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्या बोला है कि बोथ ऑफ देम आर इवन नंबर। ठीक है, सो फ्रॉम 1 to 21 there are 10 even numbers, so I can get 10 C2. In 10 C2 ways I can get my even the number of even balls, and from that whatever this number might be, I will get my answer. Okay, so moving on, time and work. Can you- So Rohan, okay. So time and work. What I can do is here first bola is Rohan takes twice the time of as Sohan. So if Rohan is taking X time, then Sohan will take X by 2 and half of the time. This is for Rohan. This is for Sohan. And half of the time, and this is for Mohan. तो इधर बोला है कि जब ये तीनों साथ मिलके काम करते हैं तो इनको लगता है 12 दिन, तो रोहन और सोहन को इंडिविजुअली कितना लगेगा। तो आई कैन जस्ट सॉल्व दिस। आई कैन जस्ट अज्यूम द कंडीशन के ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर। एक दिन में मोहन इतना काम करेगा, एक दिन में रोहन इतना काम करेगा, इतना परसेंट काम करेगा, और एक दिन में सोहन इतना परसेंट काम करेगा। फ्रॉम दिस आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड and after getting the value of x, I will find Rohan as well. I will get this answer. I have to just simply find this. This will be 3 by x. Okay. Also, what else I can do is कि यहाँ
जो रोहन और सोहन का काम है वो आ रहा है 3/x। तो मैं ऐसा नंबर चेक कर सकता हूँ जो 3 से डिविजिबल है, और वो अगर वो 3 से डिविजिबल है देन आई कैन चेक अकॉर्डिंगली। अब ऐसा कोई नंबर है तो 12 एंड 21 ऐसे दो ऑप्शन है। लेकिन जब कंबाइन तीनों साथ में मिलके 12 दिन लगा रहे तो रोहन और सोहन साथ में मिलके 12 दिन नहीं लगा सकते। सो व्हाट आई कैन चेक फॉर 21 देन 21 इंस्टेड। what I'm trying to say is that मैं रोहन और सोहन के लिए चेक करूंगा कि 1/21 लाइक ये जो मेरा एक्स का वैल्यू है ये 21 आता है कि नहीं। एंड अगर वो आता है तो वो इसके लिए मोहन के लिए 42 आ जाना चाहिए। अगर वो 42 आता है then it is the correct option, करेक्ट आंसर विच आई हैव। ओके। और जब वो चेक में भी इसलिए कर रहा क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस एज एन ऑप्शन दिया। इफ नॉट देन आई वुड हैव सिंपली मार्क 21 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 3। 12 इज आल्सो देयर, बट जब तीनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो 12 डेज लग रहा है, तो रोहन और सोहन साथ में मिलकर काम करेंगे तो 12 से ज्यादा ही लगेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम। नेक्स्ट, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन दिस। ठीक है, दिस इज लाइक अ टिपिकल, आई हैव टू सॉल्व दिस कंप्लीटली ओनली। लाइक ए अगर एक 18 दिन में काम कर तो एक दिन में ए 1/18 काम करेगा, बी 1/24 एंड सी इज 1/60। और क्या बोला, एफिशिएंसी ऑफ सी इज ट्वाइस। तो डी जो है वो 1/30 एंड 30 डेज में पूरा काम करता है, यानी इसका मतलब एक दिन में वो इतना काम कंप्लीट करता है। अब उसने क्या बोला है कि ए वर्क फॉर 2 डेज, सो 1 - 2/18, क्योंकि ए ने 2 दिन काम किया है, बी ने 4 दिन काम किया है और सी ने 6 दिन काम किया। तो मैं ये सम निकालूंगा। ये मेरा जो भी ये इक्वेशन जो भी आएगा उसको मैं इस 1/30 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे को बाकी जितना काम जो भी जितना परसेंट ऑफ काम बचा है वो मेरे को ये भी देखना है कि डी को कितना टाइम लगता है वो काम करने में। और उसको मैं फिर ये 1/30 से डिवाइड करूंगा एंड आई विल गेट माई आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत कि ए 18 दिन में काम करता है, बी 24 दिन में, सी 60 दिन में। डी का एफिशिएंसी डबल है। और तो अगर ए ने 2, बी ने 4, सी ने 6 दिन में काम किया है, तो जितना काम बचा है जो जितना काम बचा है जो मैंने ये इक्वेशन से निकाला, इसको सिर्फ मेरे को चेक करना है। इस ये डी कितने दिन में काम करेगा, काम खत्म करेगा बाकी का, एंड आई विल गेट माय आंसर। ओके, so moving on. Out of three numbers, first and second is 5:6. Second and third is 15:16. Uh, difference between first and third. ठीक है, तो अगर फर्स्ट एंड थर्ड का रेशियो दिया है 5:2, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो दिया है 5:6, सेकंड एंड थर्ड का रेशियो दिया है 15:16। तो मैं पहले तो कंबाइंड रेशियो निकाल लूंगा फर्स्ट इज सेकंड इज टू थर्ड का, जो हो जाएगा 10:12 इस सॉरी not 10:12, दिस इज इसका एलसीएम हो जाएगा 30, तो 30 25:30:32। अब बोला एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, तो दिस इज 25 + 30, 25 + 30 + 32, दिस इज 87। और इनका एवरेज आता है 29। तो आई विल जस्ट चेक ऐसा नंबर जो 29 से डिविजिबल है एंड आई विल मार्क दैट ऑप्शन विच इज 2900। और क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 29 से डिविजिबल है, आई विल मार्क दिस ऑप्शन एंड आई विल मूव। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एबीसी का रेशियो निकाला, और एबीसी का रेशियो उसका सम निकला जो आता है 87। अब 87 है, और क्योंकि एवरेज चाहिए तो 87/3 इज 29। और मैंने सिर्फ ये देखा कि 29 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, एंड आई एम मार्क दैट ऑप्शन। नेक्स्ट, लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 1470 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ मैं 1470 लिखता हूँ।
और मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जब मैं जिसको मैं डिवाइड करता हूँ उससे, तो आई गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा कि वो एक स्क्वायर को कवर कर ले। लाइक दिस इज 49 विच इज द स्क्वायर ऑफ 7, 7 का स्क्वायर है ये। व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 30 आई गेट 1470। ओके, सो जब मैं 1470 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा आई गेट 49 विच इज माय रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज माय रिक्वायर्ड आंसर। So I will just mark 30. Like question क्या है कि I have to when I divide 1470 by a certain number, I should get a perfect square. 1470 is equal 49 into 70. So I just took so basically मैं जब 30 को divide करूँगा 1470 से I will get 14, which is a perfect square. I will mark it and I will move on. Next is ratio between the two-digit number and the sum is 4:1. इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं सिर्फ ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 4 से डिविजिबल है। क्योंकि यहाँ क्या बोला है, the ratio between two digit number का sum is 4:1. तो जो मेरा टू डिजिट नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, तो मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 4 से डिविजिबल है और चेक करूंगा कि वो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ 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 है 36, तो आई विल राइट 36 हियर। और 36 का सम ऑफ डिजिट्स है 9 which is 4:1 which is satisfying my condition। instead of even going to the second condition को मैंने देखा भी नहीं है, मैंने सिर्फ इनिशियल लाइन पढ़ा और उस बेसिस पे मैंने अपना आंसर निकाल दिया। So that's it. Coming to next topic, problem on trains. Passes, ठीक है। So इसमें क्या हो रहा है, 125 again speed this is again a SPD question, speed to distance upon time। यहाँ पे स्पीड मेरा क्या है, जो ट्रेन का स्पीड रहेगा टी प्लस मैन का स्पीड, क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए इन दोनों का स्पीड ऐड होगा अपॉन 125 परसेंट। तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि इतने जो पर्सन है जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये 25 सेकंड में कितना कवर करेगा, जो कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको मैं ऐड करूंगा ये लेंथ ऑफ ट्रेन और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 25 से, फ्रॉम विच आई विल गेट द कंबाइंड स्पीड ऑफ द मैन एंड द मैन एंड द ट्रेन एंड फ्रॉम विच आई विल डिडक्ट इट एंड आई विल गेट माय आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट इज दिस अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। दो ट्रेन है, इस बार अपोजिट जा रहे हैं, तो डिस्टेंस किसी भी कंडीशन में ऐड ही होगा, इट डज नॉट मैटर स्पीड। अगर दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका स्पीड ऐड होगा, और अगर दोनों अलग डायरेक्शन में आए तो उनका स्पीड सब्सट्रैक्ट होगा। सो इधर ऐसे ही हो रहा है, इधर दो सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका स्पीड नो सॉरी सॉरी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना तो उनका स्पीड फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा एंड देन आई विल गेट माय आंसर। इंस्टेड ऑफ लाइक मेरे को सिर्फ इतना 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 कंसेप्ट पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड के लिए क्या क्या है जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, और अपोजिट के लिए क्या है जिसमें मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम विद इनइक्वालिटीज, दिस इज लाइक इसमें मेरे को दो वैल्यूज दी होंगी, इसमें सिर्फ मेरे को कंपैरिजन करना है कि इसमें कंपैरिजन करने के बाद देखना है कि वेदर लाइक जो मेरा दो क्वांटिटीज है 1 and 2, बस इन दोनों में कंपैरिजन करना है और उसके अकॉर्डिंगली मेरे को आंसर मार्क करना है। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20% लेफ्ट बिफोर लंच ब्रेक, यानी कि जो 100 थे 100% उसका 20% डिडक्ट हो गया विच इज 80%। अब उस 80% का 20% डिडक्ट हो गया 64%। 64% इज ग्रेटर देन 60%। यहाँ पे मेरे को 80% से 20% डिडक्ट नहीं करना है, तो 80% से 20% डिडक्ट नहीं करना है, 80% का 20% डिडक्ट करना है 64%, विच इज क्वांटिटी ए ग्रेटर देन क्वांटिटी बी। सो मेरे को ऐसा फटाफट सॉल्व करके आई हैव टू देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली इधर इलेक्शन हुआ 75% ने
वोट कास्ट है जिसमें से 2% वोट्स इनवैलिड है, एक कैंडिडेट को इतना मिला 9261, मेरे को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने। तो व्हाट आई विल डू इज, ओके, तो 9261 है, एक कैंडिडेट का, इसको 75% वोट मिला है, तो इससे मेरे को टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मिल जाएंगे विच इज 9261 बाय 3 into 4 विच इज 3087 12348। ये मेरे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, अब इसमें क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है, 75% लोगों ने वोट किया है, जिसका 2% इनवैलिड है। 75% का 2% होता है 1.5%, यानी कि 73.5% वो वैलिड वोट्स हैं। उसको मैं इसके हिसाब से चेक करूंगा, और वो वैल्यू, जो जो भी मेरी क्वांटिटी आएंगी उसको मैं क्वांटिटी 2 के साथ कंपेयर करूंगा, एंड आई विल गेट माय आंसर। लाइक एट द एंड मेरे को सिर्फ 12348 डिवाइड बाय 73.5 ये करना है, और मेरा जो भी आंसर आएंगे, दिस इज 73.512348 into 2 by 147। इसको मैं जितना हो सके पहले प्राइम नंबर से डिवाइड करना कोशिश करूंगा। 4116 7 से, और ये हो जाएगा 600, 600 माइनस 588, और ये हो जाएगा 84। सो 16800, 16800 इज माय आंसर। तो 16800 क्वांटिटी 2 है 150, therefore quantity 1 is greater than quantity 2। I got my answer and I go to the next question. Simplification, ठीक है, ये टिपिकल जो अपन ने अप्रोक्सीमेशन से किया था, बस फटाफट वैल्यूज देखना है, जो उसकी फटाफट वैल्यूज देखना है, एंड आई हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन यूजिंग द बॉड मास और डी मास रूल। तो क्या बोला है, रूट 96 मेरे को पता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ पॉजिटिव रूट्स लूंगा। रूट 196 इज 14 into root 144 which is 12 into 20% of 500 which is 100। हाँ, ओके, this what I can do is 1256। यहाँ मेरा जो भी वैल्यू है आखिरी में 000 ऐसा आने वाला है, और यहाँ यहाँ को मेरे को दिया है 56, आखिरी में 6 दिया है। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस 14 into 12 into जो भी मेरा वैल्यू आएगा, what I can do is I can simply deduct 0 minus 6। इसका मतलब यूनिट्स प्लेस पे 4 आएगा। मैं चेक करूंगा ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसके यूनिट प्लेस पे 4 है, which is this one 1554144। आई विल जस्ट मार्क दैट ऑप्शन एंड आई विल मूव ऑन। मैंने सिर्फ ये देखा कि यूनिट प्लेस पे मेरा क्या ऑप्शन, क्या आंसर आता है। मैंने पूरा पूरा सॉल्व नहीं किया इसको, सिर्फ मैंने इसका यूनिट प्लेस लिया, इसका यूनिट प्लेस लिया, उनका उनका डिफरेंस जो भी आएगा वो मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट, सिमिलरली मैं ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही करूंगा, जो लास्ट डिजिट दिया है, जैसे कि यहाँ पे 235.265 दिया है, 5 यहाँ दिया है 483.67, यानी कि आखिरी डिजिट हो गया 0, माइनस बोला यानी 5 ही रहेगा। 956.710 इसका भी आखिरी डिजिट 0 है, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या रहेगा 5। यहाँ पे लास्ट डिजिट है 33.523 का, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, और बीच में एडिशन बोला है, सो आई विल ऐड दिस 5 + 3 is 8। सिमिलरली मैं सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखूंगा जो है 1, और अपने को माइनस करना, सो 8 - 1 is 7। सो मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट देखे उनके हिसाब से, और उसके हिसाब से 7 मार्क कर दिए इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कम्प्लीटली। क्योंकि नन ऑफ दिस दिया है तो मैं क्विकली एक बार रफ चेकिंग कर लूंगा, लेकिन मोर और लेस मेरा माइंडसेट यही रहता था कि यूनिट डिजिट का जो मेरा वैल्यू रहता था उसको मैं मार्क कर लेता था। नेक्स्ट नंबर, Then we can do one question from the remaining topics, and second one they can try at their home. If they want any further help, Dhruv will be conducting a doubt solving session tomorrow and every weekends. So you can, they can get it clarified over there because we are running short on time. श्योर। सो नंबर सीरीज में मेरा एक ही टेक्निक रहा था कि अगर सब्सिक्वेंट नंबर्स के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सो आई यूज टू चेक कि क्या इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का पैटर्न आ रहा है कि नहीं, और अगर डिफरेंस बहुत कम है तो इनमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन का पैटर्न आ रहा है कि नहीं। लाइक जनरली दिस वाज माय ट्रिक,
when I used to solve the number series question. Also, हो सकता है स्क्वायर का कुछ आ जाए, क्यूब आ जाए, फैक्टोरियल आ जाए, फिबोनाची सीरीज जो है 1 1 1 1 1 2 3 5, ये वाली सीरीज आ जाए. तो व्हेन यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट जस्ट ये 4-5 ट्रिक्स जो है इसको ध्यान में रखना, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. तो अब जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है, 12 6 15 67.5. तो अब इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है. पहले एक का 6 हो रहा है, 6 का 1.5 हो रहा है, इसका ये हो रहा है. तो मैं इनका देखूंगा कि इनका डिवीजन का या मल्टीप्लिकेशन का कोई रेशियो है क्या. तो हाँ है. जब मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर मिलता है. जब मैं इसको 0.2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर मिलता है. जब मैं इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर मिलता है. तो मेरे को इसका पीछे का रीजन सर्टन हो गया. तो अब मेरे को सिर्फ 15 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 67.5 को 8.5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड आई विल गेट माय आंसर. Do like in similar way you can solve the remaining questions. ठीक है. तो मूविंग ऑन, यहाँ पे 2 का पैटर्न फॉलो हो रहा है. दिस इज 2+1, दिस इज 8+1, दिस इज 32+1, यानी 2+1, 8+1 is 2 cube plus 1, 32+1 is 2 raised to the power 5 plus 1, 121 plus 128 plus 1 is 2 raised to the power 7 plus 1. Like जो 2 का पावर है वो दो दो से बढ़ रहा है. Which that kind of logic is, वो लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है. नेक्स्ट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप अगेन अरिथमेटिक क्वेश्चन. लाइक इसमें तो पूरा जनरली पार्टनरशिप में मैं पूरा इक्वेशन सॉल्व भी करता था. Like I used to solve the entire. I used to like I might have showed you tricks of divisibility of roots, but पार्टनरशिप सॉल्व करने के टाइम पे मैं पूरा इक्वेशन लिख लेता था, क्योंकि इसमें ना कंडीशंस बहुत आती है कि अगर किसी ने 3 महीने बाद विड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, 4 महीने बाद कोई नया प्लेयर आता है तो क्या होगा. सो व्हाइल सॉल्विंग पार्टनरशिप क्वेश्चंस आई यूज्ड टू, इंस्टेड ऑफ you know uh, going for tricks, I used to keep it solve it this way. So yeah, I can like move on for now, or I can solve some question which I can solve this one. सुधीर and तुषार. ठीक है. सुधीर and तुषार का मेरे को रेशियो का ये दिया है, which is x is to 3x, और इनका टाइम पीरियड भी दिया 2:3. तो जाहिर सी बात है इनका जो भी इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनके जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वो 2:9 के रेशियो में रहेगा. तुषार का दिया है 27 और 270,000, और सॉरी या 270,000, और इसका सिमिलरली आ जाएंगे 60,000. एक साल का हो गया 33, तो 4 साल का हो जाएगा 132. इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. इसके लिए एक कॉमन मिस्टेक है जो लाइक मैं भी करता था, कि अगर कॉमन टाइम दिया है, लाइक अगर एक का स्पीड 40 दिया है, एक का 160, एक एक घंटे के लिए, और अगर एवरेज स्पीड पूछा है तो इट वोंट बी 50, इट विल बी 2 into xy upon x plus 1. I have to just find this ratio. This was a common mistake which I used to which happens. So take remember this while solving this kind of question. This question. Let me Okay, let me solve this question. Amit, Ajay, number इसको speed दिया, and then find the time taken. ठीक है. तो 5:4:3 का रेशियो दिया है. अब मेरे को स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला पता है. मेरे को ये पता है कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर इनके स्पीड का रेशियो ये है तो इनके टाइम का रेशियो ये हो जाएगा. तो अगर मैं इनका एलसीएम निकल जो है 60, तो ये हो जाएगा 12 into 15 is to 20. अब क्या बोला है, टाइम टेकन बाय अनिल. अनिल का कौन सा है, सेकेंड. तो मैं सिर्फ ये देखूंगा ऐसा ऑप्शन भी 15 से डिविजिबल है, which is 30. I will check with regarding to the remaining questions अगर वो satisfy कर रहा है कि नहीं. I will mark 30 and I will move on. Again मैंने जो divisibility का फॉर्मूला यूज किया था, मैंने सिर्फ ये देखा कि ऐसा ऑप्शन पकड़ा जो 15 से डिविजिबल है,
और उसके हिसाब से मैंने बाकी का सॉल्व किया। moving on. Just a second. Just give me 1 minute. Anyone wants to ask any doubt, you can put it on the chat. I'll try to answer. Okay, I have a question. Getting around 120 and committing silly mistakes of around 10 to 15 in mocks. What to do? Now I have corrected some of my mistakes. Okay. Next, Viren, am I audible? profit and loss. Teacher, I will solve the first one. I will like how I would have solved the first one. 40 articles खरीदे same cost price में, ठीक है, and 24 को बेचा उसको। So one thing what I used to do was मैं assume कर अभी उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मैं assume करता था कि 40 को उसने खरीदा था 100 रुपए में, तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस आता 4000। लाइक आई एम जस्ट अज्यूमिंग राइट ना। 24 को उसने बेचा 30% प्रॉफिट में, तो उसको बेचा 130 में, और 16 को बेचा 20% में। सो ये हो जाएगा 24 into 13 which is 3120 और 16 1920। इसको मैं ऐड करूँ तो हो जाएगा 40 और 5 ईयर 26% का प्रॉफिट। अब इसने बोला है कि had he sold 15% his profit would have been reduced by। अच्छा ठीक है, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा लाइक मैं अप्रोच बताता हूँ मैंने क्या किया। लाइक मैं अज्यूम करता था कि वो 100 है, और बाद में जो मेरा कॉस्ट प्राइस आता था ना, उसके हिसाब से मैं उसको रिलेट कर लेता था। लाइक अगर मेरा कॉस्ट प्राइस आ रहा है 15, तो फिर जो मेरा इसको 50 है, इसको मैं 15 के हिसाब से चेंज कर लेता था, इसको मैं 15 के हिसाब से चेंज कर लेता था। राइट नाउ दे आर आस्किंग कि अगर मैं 15% प्रॉफिट पे बेचता हूँ तो 15% पे, तो मेरा प्रॉफिट 880 से कम हो जाएगा। तो मेरे को उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो लाइक लेट मी सॉल्व द बेसिक इक्वेशन। लाइक 115x plus 880 is equal to 20 40 into 115x plus 880 is equal to 24 into 130x plus 16 into 120। ये मेरी इनिशियल कंडीशन है। 24 यूजिंग 30%, 16 यूजिंग 20%। ये मेरा ओवरऑल वाला प्रॉफिट, और ये मेरा 880 लॉस है। ये मैंने सिर्फ बेसिक इक्वेशन बना के दिया। व्हाट यू कैन डू, you can then find the value of x and you will get the cost price of the material। ठीक है, moving on। परसेंटेज अगेन सिमिलरली इसके लिए भी फर्स्ट वाले के लिए आई वुड हैव अज्यूम कि ए का पॉपुलेशन, ए का स्ट्रेंथ है 100, बॉयज एंड गर्ल्स का स्ट्रेंथ रहेगा 40 और 60। इसके बाद क्या बोला है, बी का स्ट्रेंथ है 5 बाई 10 13 37.5 18.30 31.25 और 18.25। सो आई वुड हैव got received this rough values condition के हिसाब से, and then I would have found my and I would have then found my percentage, the required one। Okay. Next, compound interest। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आई वुड रिकमेंड कि है ना, लर्न द स्क्वायर्स फ्रॉम 10 to 11 to 20 ये सबके स्क्वायर्स और ये सबके क्यूब मेमोराइज कर लो।
क्योंकि when you see this is the formula of compound interest which is 1 upon r by 100 by n. तो वो एकदम 1.2 1.3 हो जाता है, और अगर ईयर अगर 2 3 है, so that's why आई एम आस्किंग कि 11 से 20 तक स्क्वायर्स एंड क्यूब्स इसको मेमोराइज कर लेना for like attempting this kind of question. Let me solve this one. Second one, a man takes a loan of ठीक है, ठीक है. So man ने वो आदमी ने इतने का लोन लिया 216,000, वो एक साल बाद कंपाउंड होके हो गया 16.67 बाय 100 अपॉन माइनस. ठीक है. सो ये मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया पहले साल के लिए, क्योंकि वो हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट वापस कर रहे हैं. तो पहले साल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले साल का अमाउंट काउंट कर रहा हूँ 16.67 बाय फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाल लूंगा which will be 25200. उसमें से मैं 84,000 डिडक्ट कर लूंगा, where I will get 168,000. सिमिलरली मैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का अमाउंट वैसे ही निकाल के लाइक 168,000 को का मैं फिर से करूंगा, जो अमाउंट आएगा उसको मैं उसमें सेकेंड ईयर में जितना रिटर्न किया उसे डिडक्ट करूंगा सिमिलरली थर्ड ईयर में. सो एट द एंड मेरे को आई विल गेट माय आंसर. ओके, मूविंग ऑन. रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, आगे here I would have to, again ratio and proportion, like every trick I showed you has some kind of basis from ratio and proportion. Divisibility let's say लेके जो मैंने average वाला निकाला था, like I used to simply see the number which is I used to see options regarding according to that. So yeah, like these are simple questions only, simple questions. PNC, this is an important topic, modern PNC, permutation combination. Let me solve this question. ठीक है, एटलीस्ट 5 गर्ल्स, तो 7 बच्चे सिलेक्ट करना है, 7 बच्चे सिलेक्ट करना है, 7 गर्ल्स है, 5 बॉयज है, और उसमें से एटलीस्ट 5 चाहिए. तो सिंपल, सिर्फ मेरे को अगर 5 लड़कियां मिले तो 7C5 into 5C2, तो 7C6 into 5C1 plus 7C7. सिर्फ मेरे को ये इतना इक्वेशन सॉल्व करना है एंड आई विल गेट माय आंसर. लाइक ये कंडीशन की 5 लड़की 2 लड़कियां लिया, ये 6 लड़की 1 लड़का लिया, वो वाली कंडीशन, और ये साथ के साथ ही फीमेल्स को लिया वो कंडीशन. सो आई कैन गेट माय आंसर. 2 से लेके 10 तक जितने भी कॉम्बिनेशन वाले 2C2 से लेके 10C2 तक, और 3 से लेके 10C3 तक, ये जो भी वैल्यूज है ये मेमोराइज कर लो ताकि उतना टाइम कैलकुलेशन में बच जाए. नेक्स्ट, mixture and allocation. So copper and zinc, का रेशियो दिया है 200. सो मैं क्विकली इसका रेशियो निकाल लूंगा 18:120, और पूछा है कि 3:2 बनाना है. सो सिंपल, इसको मैं 2 में रखूंगा, और ये 2:3:2 रेशियो में कब आएगा, जब यहाँ 180 आ जाएगा. सो व्हेन आई एम एडिंग 100, तो वो आई विल गेट माय आंसर. लाइक क्वेश्चन में क्या बोला है, तो मैंने उसके हिसाब से उसको निकाला. फिर मैंने अज्यूम किया कि जितना मेरा जिंक का है वो सेकंड पार्ट है, और उससे मैंने कॉपर का रेशियो निकाला, एंड देन आई गॉट माय आंसर. हाँ, इसका एक ट्रिक है, लेट मी शो यू. आई थिंक यू माइट बी नोइंग इट, बट लेट मी शो यू. कि अगर 2 नंबर दिया है ना, तो HCF into LCM जितना होता है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 नंबर्स. ठीक है. अब इसमें क्या दिया है, अब उसमें 98 बोला है और 2352 दिया है. सो 98 इज 98 into 1. ठीक है, ये मेरे को पता है. 2352 इज 98 into 49,
No, no, no. Not 90 to 49. I think I made some error. 19 into 24. 19 into 24. So one thing is for sure कि वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो जो भी मेरा आंसर आएगा वो 98 का डिविजिबल होगा क्योंकि ये मेरा जो एलसीएम क्या होता है एलसीएम मेरा जो जो दो नंबर्स का होता है उससे डिविजिबल होता है ना तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो मेरा आंसर रहेगा वो 98 से डिविजिबल रहेगा तो आई विल चेक माय ऑप्शंस के इसमें से कौन सा 98 से डिविजिबल है एंड सिमिलरली आई विल solve it. 98 into 11 is 1078. So yeah, first मेरा option one is the answer. ठीक है. Again, here, here let's do this one. The third one, height of cylinder दिया है 15 सेंटीमीटर और lateral surface area यानी कि उसके जो दो सर्कल्स होते हैं उसका surface area इसका फॉर्मूला है 2 pi RH which is 660 और क्या बोला है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है pi r square. So what I can do is I know what is pi RH, which is 330. Sorry, pi RH. अब जब मैं इसको R से मल्टीप्लाई करूंगा तो I will get pi r square h, which is my volume. So what I can do is I can simply check options which are divisible by 330, and that option will be my answer. Or there is only one option, which is 2310. Because by 330, I get a 7. The rest of the numbers, 1155, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बट यहाँ पे जो मेरा रेडियस है वो मेरा पॉइंट में नहीं दिया है सो दैट्स व्हाई आई विल मार्क 2310 एंड आई विल मूव लाइक आई कैन फाइंड इस कंडीशन से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ लेकिन क्योंकि मेरे पास पायर एस का वैल्यू है और मेरे को सिर्फ पायर एस का वैल्यू है और मेरे को सिर्फ आर मल्टीप्लाई करना है तो मैंने एस्टिमेट किया और उससे मैंने अपना आंसर निकाल दिया नेक्स्ट एरिया पेरीमीटर फाइंड करना है साइड्स का रेशियो है 4:9 तो और पेरीमीटर मेरे को बोला पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी और अब 4:9 का अगर रेशियो दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ में तो इसका मतलब एल प्लस बी जो इसका मतलब मेरा पेरीमीटर जो है वो 13 से डिविजिबल है तो मैं सिर्फ ये चेक करूंगा और ऑप्शन जो 13 से डिविजिबल है एंड आई विल मूव दैट विच इज 52 पिछले रिकैप में 4:9 का रेशियो है तो जो एल प्लस बी है वो 13 है इसका मतलब जो मेरा पेरीमीटर रहेगा वो 30 से डिविजिबल रहेगा इसके लिए चेक किया कि ऐसा कौन सा ऑप्शन भी 30 डिविजिबल है आई मार्क दैट ऑप्शन है ठीक है दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन है दिस लास्ट टॉपिक if anyone has any doubt then or Shreekanth Yeah, Viren, am I audible? Yeah, okay. So I think I'll take a couple of questions. Just give me 2 minutes, guys. In these 2 minutes, you can post whatever questions you want. guys I am done from my side if you have any question then from my side A question, please put down your questions in the chat. just a minute about Yeah, guys. So, okay. First, I'll start with one of the questions which was asked earlier.
So students were scoring around 110 to 120 and committing silly mistakes of around 10 to 15 marks. Now, what to do now? So now I have corrected some of my silly mistakes, but every time I do the analysis, I get the silly mistakes again. So firstly, you have to understand that CET exam you have to sit in the exam for 2.5 hours. ठीक है? 2.5 hours में आपका focus 100% constant नहीं रहेगा. काफी टाइम ये होता है कि स्टार्टिंग में द फर्स्ट 1 hour ऑफ योर पेपर यू आर ऑलवेज वेरी एक्टिव एंड देन इन द नेक्स्ट 45 minutes or 1 hour your focus gets a bit lower, and when the ending approaches in the last half an hour your focus again rises. Mostly you have to realize कि silly mistakes कौन से टाइम पे होता है और कौन से टाइप के क्वेश्चंस पे होता है. So an easy way to do this is to have a warm up kind of an exercise, which I normally suggest students to do. What you can do is before you go and sit for a mock, right? अगर आप mock देने बैठते हो तो ideally हम लोग mock से पहले कुछ solve नहीं करते, कुछ पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट mock start करते हैं. तो mock में ही silly mistakes होने के chances ज्यादा है. So just to give you an example, if I read one article or one RC before giving the mock, and I go through the questions, etc. And then when I give the verbal section, right? So I have already read 600 words. तो मुझे एक ये बन जाता है, एक confidence आ जाता है कि हाँ मैंने already solve किया. You're not starting to solve it from fresh. So it's a warm up kind of an exercise. और दूसरा चीज आप ये कर सकते हो कि whenever you're making silly mistakes, right? You are in a hurry to solve the question. But always whenever you're picking one question to solve, you have to decide कि should you solve this question, not कि इसको मुझे solve करने को कितना time लगेगा, ये late हो गया, जल्दी होगा. Rather than that, you should focus on should you solve this question, is it difficult, or should you solve it later. Couple of other suggestions would be to solve question in rounds method. तो राउंड रॉबिन मेथड करके एक होता है जहाँ पे कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट 1 hour में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, ओरली दे कैन सॉल्व इट. एंड देन सेकंड राउंड में वो लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पेन पेंसिल यूज करके आप पेन पेपर यूज करके सॉल्व कर सकते हो. इससे होता ये है कि while you're solving questions which does not require pen and paper orally, you're just going through those questions first time, and second time when you're solving it using pen and paper तुमने already वो questions पढ़ लिया है. So the chances of making silly mistakes decreases because you have already read that question like 10 to 15 minutes ago or half an hour ago, and now you're coming back, so you read it once more, and that's why again your silly mistakes will be reduced. So this is one thing which you can do. Apart from this, I always suggest students to make a list of all the silly mistakes which you have done in your previous mocks. तो आप पिछले 2 या 3 मॉक के आपके सिली मिस्टेक्स अगर देखते हो तो आज फॉर एग्जांपल कल सुबह मुझे 9 बजे मॉक देना है, लेट्स से. तो पिछले जो 2 मॉक्स में मैंने सिली मिस्टेक्स किए हैं, जो जो क्वेश्चंस गलत किया है, रफली 50 क्वेश्चंस के आसपास होगा. इफ यू आर स्कोरिंग 120 वगैरह स्कोर करे तो 50 क्वेश्चन के आसपास होगा या 20-30 क्वेश्चन के आसपास होगा जहां आपने सिली मिस्टेक्स किया होगा. तो ये क्वेश्चंस को मैं मॉक देने से पहले एक बार गो थ्रू कर लूंगा. आई जस्ट मेक श्योर कि मैं याद रखूं कि मैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक्स कर रहा हूं. And when that question occurs in the paper, right, that will help me. Now this is a method which helps you while you're solving question. ये theoretical method है. दूसरा मेथड एक और चीज है जो आपको 100% फॉलो करना चाहिए, इज हाउ टू मेंटेन योर कंपोजर ड्यूरिंग एग्जाम. सिली मिस्टेक्स होने का 2 रीजन है. एक तो आप हाई में हो, आपका फोकस का इशू है, इसको आप बेटर कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग अ लॉट. और दूसरा मेथड ये है कि आप अपने ब्रेन को थोड़ा ट्रेन कर सकते हो या उसको थोड़ा ट्वीक कर सकते हो. हाउ कैन यू डू दैट? आफ्टर एवरी 45 minutes or 1 hour, take one sip of water. Don't look at your laptop. Look the लैपटॉप को छोड़ के बाहर बाजू में थोड़ा सराउंडिंग को देखो, बिकॉज 2.5 hours if you're continuously looking at your laptop, your brain gets smog, like ये हो जाता, ब्रेन फॉग टाइप फील होने लग जाता है. एंड हाइड्रेशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है. आप बीच बीच में 2-3 से पानी लोगे तो यू विल फील रिफ्रेश. यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ्स एंड देन व्हेन यू स्टार्ट अगेन it will be like you're starting a new move, right? So that is also one more thing which you can try. Viren, do you want to add anything? Are we audible? I think Yeah, yeah. Shreekanth, am I audible? yeah, you're audible.
Yeah, so on similar lines, like when you जब mock like when you start your exam, no, starting में try to pick easy questions and try to solve as much as you can, and try to solve easy questions only, the other topics in which you are good at, so that starting में you are able to complete the paper as much as you can. क्योंकि क्या होगा कि एक घंटे बाद you start to feel tired, like you guys might have also noticed कि after some time थोड़ी सी है ना कि सब स्ट्रेस, थोड़ा सा थकान आना स्टार्ट होता है, और फिर अ, ऐसा होता है कि द क्वेश्चंस इन व्हिच यू माइट हैव टेकन 30 seconds 40 seconds, because of tiredness you are not then taking 40 to 50, you are taking 1 minute more than that. So don't do that, like because this kind of questions are like your low hanging fruits. तुम फटाफट इसमें से जितना ले सकते हो, it will be very helpful. So Yeah, that's exactly. Yeah. Also, so a couple of questions more. Viren, students are asking they're scoring in the range of 110. Can they still reach the target before the exam date? So, firstly, I want to say one thing, and obviously, Viren, you can then later on add to it. So, my answer to this is कि a lot of students have done it in my batch, in my seniors batch, and in my juniors batch. Viren is my junior batch, so he can also confirm it. I think. So, what do you think if you're scoring around 110 right now, and let's say there are 20 days to CET? Do you think you can still reach the target? Yes, definitely you can. What you can do, see, giving a mock is important, and because you're scoring, like you have an idea of your score, it means that you are giving mocks. Analyzing the mock is also, analyzing the mock is also very important. So when you start your analysis, note down the topics in which you feel you are weak at, and in which you feel that you are taking more than ज़्यादा time ले रहे हो. So you can improve on these topics, क्योंकि अच्छे टॉपिक्स में तो like the topics in which you are well scoring, you might get an high accuracy, but in which you are not, then note down वो topics note करो, and then revise that topic again, solve, practice problems from the topic again and again. Like I can give a personal example. My syllogism was a bit dicey, so what I did was, after I kept a gap of 2 3 days, I practiced number of questions of syllogisms, and then I attempted it. So the 5 marks which I was losing on syllogisms, I was able to recover. So ऐसे ही सब अगर 105 to 110 आ रहा है, तो basically that 2 3 topics which you are not able to perform, that can be able that you will be able to like that would be able to वो cover हो जाएगा if you are able to analyze your mocks properly. Like if you know कि हाँ मेरा ये mistake properly हो रहा है, and you are working on that. Yeah, exactly. And in the last couple of days, like last few weeks, rather than giving a lot of mocks, we should focus more on analyzing the mocks because that is more helpful and give a lot of practice and sectional test also. Because more than mocks, practice test में आपका silly areas जो भी जहाँ पे mistakes हो रहा है, silly mistakes हो रहा है, वो improve होगा. So there is one special question for you, Viren. People are asking, what is your paper attempting strategy? So what I used to do was, my quants was like uh, above average. So about quants, traditional LR, and easy abstract questions, and easy verbal questions, which is match the pairs, fill in the blanks. Initially, one for 60 minutes, 70 minutes, I used to solve only this kind of questions. Like मैं starting में इनको ही लेता था. मेरा strategy होता था कि initially first half में 75 minutes में I have to solve 80 to 90 questions with a very high accuracy. मेरा accuracy 90 to 95% तक होना चाहिए at least first half में. इस दौरान मैं puzzles नहीं लूंगा, DI sets नहीं लूंगा, RCs और critical के questions ये सब नहीं लूंगा. When I go to the second half, then I will pick the medium difficulty cons question, the DI sets which I have left, the puzzles which I have left, uh, the the puzzles which I have left. Then I used to solve the critical questions, the easy critical questions like course of action. These kind of questions I used to pick. I used to then solve these kind of questions, and then in the last, if around 140 minutes, I would see के 150 160 attempt हो गया. I would try to pick some difficult questions. If I am able to solve them, then well and good. If I'm not able to solve them, then I would just mark a fluke then in the last 2 3 minutes. So basically, अगर इजी क्वेश्चन और अगर फटाफट पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करे ना, और
120 to 130 क्वेश्चन इजी सीईटी देता ही है, तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है, क्योंकि पेपर स्टार्टिंग में पेपर अच्छा भी गया एंड यू आर एबल टू सॉल्व some like many questions in the first half itself. Yeah, that totally helped you get your score really good. I think we are pretty much done, Viren, with all of the questions. Uh, so okay, there is one last question. How are CET centers allotted and are EduGorilla mock good enough? I haven't given EduGorilla mock personally. So every mock is good enough, I feel, if they, if some toppers have given it and if they've received the scores. But how CET centers are allotted is something I don't think that we can answer that. It is all up to DT people. And also, if CET is getting delayed, students are asking. See, all those things are not under our control. So, just an advice as a senior, which I would give to all the aspirants, is that only focus on things which are under your control. So if we have a date of March 18 given by CET people, so we should just try to make sure that वो डेट के अंदर हम जितना ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं वो कर ले. What are things under our control is that practicing a lot of questions, solving mocks, attending master classes and also attending mentorship sessions, getting insights and then working on it. So please focus on that. जो भी है delay होगा नहीं होगा, we will get a notification, and once we get a notification, obviously we will also inform every one of you guys. So thanks a lot, Viren, for joining this session. And for this master class, a lot of students have benefited a lot from this, I hope. And really thankful for you, and also have a really good journey at JBIMS. Hopefully, we are in touch Hmm. a couple of more sessions later. Sure, sure. Yeah. So I will be ending the session now. One small announcement for all of the students is that the next session will be the LR masterclass taken by Rajat. He is again a 99.99 percentiler. He will take the session at 7 o'clock today, 7 to 9 p.m. And we will send the link on the Telegram group as well as on the TTP WhatsApp groups. So thanks a lot for joining, guys. And I will be ending the meeting now.